Okay, Pete, what's your point? Point is, our natural orientation is in the Indus Valley, not in the Ganga Jamna. Oh, yeah, you're right. Okay. Yeah, okay. Thank you, Pete. Hold on for a second. Others waiting to Thank you speak. very much, Koil, Sandeep ji. I think I'm done for now. yeah, Thank you. yeah, okay. Thank you, Thank you. Puneet. Uh, yeah, let's go to Third Eye. Welcome, ji, welcome. Third Eye, go ahead, my friend. Jayan Puniji. And I just want to build upon what Karamveer ji was saying earlier. I mean, your work has been instrumental, at least in my learning of the Sikh religion. So I am a Sanatani living in Canada, and my wife is a Sikh. And when all of this started happening in India, I would say your primary sources and the way you quote them, and the fact that you're establishing a common ground between, hey, this is how Sikhi was, and Sikh people were very comfortable with their Sanatani identity, and there is not a Hindu Sikh issue. I think the way you bring out these facts has been instrumental for our peace of mind, at least. And the kind of radicalization and the Abrahamization that SGPC Amritsar is doing with the Sikh religion, and every time as a Sanatani or as a non-Sikh person, someone tries to point this out, suddenly they twist it into this Hindu versus Sikh issue. And that's why your work is instrumental, because this has to come within the it has to come from within the Sikh community to avoid the communal. Please stay safe. We are glad to have you back on Twitter. My only question to you is, how can we, as Indian expats in Indian diaspora, help you in your cause? Is there something we can do for you? यार देखो, वैसे मैं बता रहा हूँ, मैं सीधी सीधी हेल्प तो यार देखो, दो चीज हो कि वर्कलोड में हेल्प हो जाए। तो मैं आपको ऑनेस्टली बता देता हूँ कि जो है ना कि इंडियन जैसे लोग हैं, वो दिल के बड़े, मतलब जैसे ना कि हम वी आर वेरी वेरी वार्म पीपल, बट ये जो काम है ना, लाइक दिस इज वेरी सीरियस एंड यू नीड अ वेरी पर्टिकुलर पर्सन. वी आर नॉट वेरी रिस्पॉन्सिबल, और वी कैन से द वर्क एथिक. तो जैसे मैंने कईयों को मेंटर किया, ये नहीं कह रहा कि सारे हैं, कि एक दो ठीक है, बट जैसे उनको ये कहा तो उनको मुझे ये लगता है कि अच्छा ये पढ़ के ये कर दियो, और मुझे ये लगता है कि एंड टाइम मुझे पता है कि भैया इसकी मासी बीमार हो जाएगी तीसरे दिन, या कोई ना कोई काम आ जाएगा. फिर एंड में मैं लाइक आई एम ओसीडी, फिर मैं सोचता रहता हूँ इसको मैंने कहा था, ये दिन आ गया, ये करेगा नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा, वो मेरा उसमें टाइम हो जाता है. तो एंड में मैं इतना, sorry, go ahead, finish your thought. I have a question for you, Puneet. Same line. इसके बाद मैं, मेरा यार ये एक्सपीरियंस है ना कि मैं किसी को काम दे के अपने साथ कराने के काम में, मेरा वो काम तो वो अगर कर भी दे तो ना पुना, मेरा उससे ज्यादा टाइम लग जाता है. तो फिर मैं अब किसी को कहता नहीं. कोई अगर मुझे कहता है मैं ये कर, मैं उसको खुद गाइड कर देता हूँ, अच्छा भाई तेरा इसमें इंटरेस्ट है, तू यहाँ जाकर पढ़ ले, मेरे से पूछ लियो. तो मैं अब बेसिकली अकेला ही करता हूँ कि कम से कम सारा कुछ मेरे हाथ में. दूसरी बात यार, पैसे की बात है, तो पैसा तो देख यार, देख न्यूयॉर्क बहुत महंगी जगह है, बट अभी हमारा कोई बच्चा बच्चा तो है नहीं, तो जो मेन खर्चा होता है यहाँ पे, ठीक है. और मेरी जो वाइफ है, मतलब उसकी भी ठीक है, कि जैसे अभी 1 साल हो गया मैं किताब पे काम कर रहा हूँ, तो मैं कोई मतलब अपने नहीं है, बट हमारी सेविंग्स हैं. और जो वाइफ है उसको भी कोई पैसे का इतना लालच नहीं है, तो अपना बढ़िया से रोटी पानी चल रही है. Just a quick question. Don't you think ये जो हिंदुत्व की इतनी बात करते हैं, हिंदू धर्म की बातें उठाते हैं लोग, जैसे ये भगवंत, क्या नाम उसका, जो उसका हिंदू महासभा का हेड है, don't you think they ought to get together and give you substantial chunk of cash to produce outstanding literature, जो तुम्हारा, जिस पे तुम बात करना चाह रहे हो? Don't you think it is time, जो कितने नहीं करमवीर भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं जैसे एक बार चला गया था यहाँ पे, उनका था उमेंद्र रत्नू जी का किताब का था, और यहाँ पे कोई वो, नहीं, पर if I was a Hindu leader, I would take this as a triggering point, and I will have a competitive edge to produce the entire translation of entire Sikhism from Bhojpuri to Hindi, English, so that people can access, so that there is no more drama. A problem क्या है, पंजाबी बहुत लोगों को नहीं आती, ठीक है, and this become an exotic thing. Bhojpuri नहीं आती सब लोगों को, so the exotic drama has created more exotic चीजें हो जाती है ना. A few selected ones can know. जैसे पहले पंडितों की वो थी मोनोपोली शास्त्र के ऊपर. Not many people knew about it, शास्त्र में क्या लिखा हुआ है, पर धीरे धीरे गीता प्रेस गोरखपुर ने क्या करा, हिंदी में अनुवाद किया. उसी प्रकार से सिख धर्म के जितना भी लिटरेचर है, उसको हिंदी इंग्लिश में अनुवाद होना
massive scale पर बहुत जरूरी है. Hindu Mahasabha should take responsibility for contribution. ये बहुत जरूरी है इस वक्त. Can I say something, Sandeep? Yeah, go ahead, Meninji. Yeah, Karamveer ji, why do you start striking at Hindus? Must One minute. very important. One minute. I know. Important thing can be said. It is a responsibility of everyone. It's not just. Don't just use the word Hindus and all that. I don't know what problem you have with that. But Puneet, I will say you. I know you. When somebody asked you what kind of help we can do, I think there are so many ways we can help. Spread the word, his videos, YouTube videos. Share it in the groups. Share in your WhatsApp groups. I do that. My sister knows. So many family members knows about his work, and RT his tweet. Spread the word, not just do the like, but when you do see his tweet, RT it. So those maybe 10 more people will what he's doing and what kind of question he's raising, and I will just request stop striking on Hindus or Muslims or Sikhs or anyone. It is a collective effort. Everybody has to be in it. He knows so much. We can take him as a leader in this particular issue and support him strongly. That's the only thing I will say. But I will not use Hindus and what. Thank you, Meninji. I think you made your point. Very good point. JJ, I'll come to just give me 30 seconds. Just one point to Puneet. If he's writing his book, we have Kula Press, which we run. If you in any which way wants it to be printed, we are open for it. We'll do it for free. So don't worry about it. हाँ जी, वो जीतर जी हम बात करेंगे, बट मैं वैसे मेरी बात कोई और थी करमवीर भाई। आप ये जो जैसे बात कर रहे हो ना कि देखो आप एक तो ये हर जगह कहते जी ये इनसे आरएसएस से पैसे खा गया, ये वहां से पैसे। आप मेरा कोई भी देखोगे ना कि कहीं भी मैं ट्वीट कर रहा हूँ, आपको इतने बंदे दिखेंगे कि भाई पुनीत हम तेरी कैसी मदद कर सकते हैं फाइनेंशियली, वो हर बंदे। अब मुझे ये लगता है कि यार देख अब ऑलमोस्ट सारा काम तो हो ही गया। मतलब जैसे हमारे पास है, हम कोई यहाँ पे कोई मिलियनेयर नहीं है, बट हम जैसे हम वेजिटेरियन खाना खाने वाले, हमारी तो मतलब जितना है ना वो क्या कहते हैं बहुत बढ़िया दाल पानी चल रही है, और ना अभी हमारा कोई बच्चा है कि हमारा कोई ज्यादा बड़ा खर्चा हो। No, I hear you. For example, बात तो सुनने दो ना यार, आप बात सुनो प्लीज। तो मैं तो ये कहता हूँ जैसे ये ना अभी आपकी जो बात है, मेरे को सैकड़ों ने कहा है कि ये पैसों की मदद के बारे में, सैकड़ों। और ये मैं नहीं कह रहा कि मैंने कहा, आप जो मैं ट्वीट करता हूँ ना, जैसे जो वायरल हो जाए उसके नीचे ही आप देख लेना कितने बंदे पूछ रहे होंगे। मैं उनको ये कहता हूँ यार अपना से चला ठीक है, मेरे को लगता है ये किताब हो जाए ना। That's your character. वो तो आपकी moral integrity है. You're a man with a lot of spine. One could see that. It's very clear. By sab, to fight against a Khalistani movement, you need a lot of moral courage, which you have. I was just wondering about, जैसे ये बंदा था मूर्ति family थी, they gave $5.2 million to Harvard, जो मूर्ति Classic Library of India लोगों ने बनाया वहाँ पर contribution. I was just wondering about it. Some rich dude can say, well, we are dying to have this entire Sikh literature translated in English and Hindi, so that it's not exotic anymore. Karamveer, I take your point, but again, let's stick to what we can do, right? We cannot control what others do. Like Miniji said, we can help Puneet in so many ways. Just spread his word. He's doing the hard work. We can help him to we can do GoFund kind of a thing. I think it's time you need to be paid for this little support, man. You will go crazy otherwise. The amount of work you're doing, you're working like a British archaeologist. Nothing impedes you. You work hard, you go to those arcane places, you dig stuff out. Man, you are a fucking warrior. No, seriously, man. I'm not trying to butter you. Yeah, you're an exemplary person. Karamveer, thank you. I think we got your point. Let's move on. Puneet is here. A lot of people have questions about the research he's doing, Sikhi history and all those things. I think that's more productive for Puneet to answer those kind of questions so that we can learn. I will go to people who have raised their hands. If you have a statement, please make sure it is a very brief statement. And if you have a question, please go ahead and ask Puneet. Yeah, go ahead. Who is that?
Prameya. Yeah, go ahead, sir. Thank you, sir. Hello. Yeah, thank you. Go ahead. Yeah, ask your question or your statement. Make it very brief. Yeah. Thank you, sir. Puneet sir, you are doing a great job. Thank you for that. And the main statement I want to make is the main thing. Everybody wants to be other one first, like the like the man, the I don't know his name, the Karamvir told that the sir told that Puneet is doing that, Puneet is doing that. Yes, what are you doing? Books are also available, which are translated already in the olden days, like in 90s also they have translated many books from Punjabis to other languages, which is freely available in internet. If you can search that, everything is available. We are not studying our text and blaming others, like blaming others for hello, for our mistake. कोई किसी Yeah. को blame नहीं कर रहा. There's Yes, no thank you. blame game here. Yeah. Yeah, I mean, let's not try to target each other. Let's try to learn about the conflict and the history and the theology. That's more. And Pramay, I'll just say, जैसे आपने कहती है ना कि आप 90s में हो गया, आपके पास क्या सबूत है इस बात का भैया? सिखिज्म के बारे में क्या हुआ? It was a very active intellectual tradition in 1920s. बट जब से ये SGPC बनी है ना, SGPC आप इसको मान के चलिए, SGPC was basically JNU entered. तो इन्होंने बेसिकली जो दूसरा साइड था उसका तो इन्होंने बिल्कुल डिकैपिटेट कर दिया. और SGPC तो बेसिकली एक तरह उन्होंने तो यूनिवर्सिटी कैप्चर की ना कि आप किसी को पॉइंट कर सकते हो. SGPC ने तो यही डिफाइन करना शुरू कर दिया कि कौन सिख है और कौन सिख नहीं है. सो एक्चुअली इट इज सो फैसिनेटिंग कि जैसे मैं जब मैं 1920s में जाता हूँ, लाइक देयर इज सो मच डिस्कशन लाइक कि SGPC पर्सपेक्टिव और दूसरा पर्सपेक्टिव है ही नहीं आज के बाद. वो सारा का सारा गायब कर दिया. देन आई विल टेल यू कि अंग्रेज के जमाने में फ्रीडम होती थी एंड वो जो था, तो इफ यू रीड, जैसे उस टाइम का मैं आपको बताऊं, द मोस्ट, जैसे इंग्लिश जर्नल भी आप लेना ना, ये बहुत सारी ट्रांसलेट ही नहीं हुई और लोगों को समझ ही नहीं है कि क्या ट्रांसलेट करना, कि ये जो ब्रज के अंदर लिखा हुआ तो दे आर मल्टीपल मीनिंग्स. एंड इसकी पुराणों की नॉलेज इन्होंने तो बिल्कुल कह दी तो हिंदू है, वो किसी ने जनरेशन से नहीं पढ़ा हुआ तो उसका क्या मतलब निकालोगे. अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एक उस टाइम जो सबसे इंपॉर्टेंट जनरल होता था, नाउ इट इज वेरी जनरल, बट द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल था, उसका नाम था पंजाब पास्ट एंड प्रेजेंट. ठीक है, तो वो आप अगर इफ यू रियली लाइक डिग थ्रू इंटरनेट, यू विल आल्सो फाइंड सम पेपर्स. मैं अब एक आपको क्वेश्चन देता हूँ कि आप 1970s का कोई रैंडमली पंजाब पास्ट एंड प्रेजेंट उठा लो और आप ये उठा लो 2000 के बाद का, यू विल बी शॉक्ड उनकी क्वालिटी में क्या डिफरेंस है. In 1970s, it was genuinely like a world-class publication, and they are looking at all kinds of things. But ये 90s, 70s के बाद जब से ये भिंडरावाला और ये खालिस्तान आया, ये क्या हो गया? वो भाई सारी इंटेलेक्चुअल फ्रीडम ही खत्म होगी. वी आर बिकमिंग मोर एंड मोर लाइक पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. तो भाई वो जो था ना कि 70, ये तो अगर किसी को है कि उसको वो खोजना है और वो 70s में जा रहा है, लाइक व्हेन आई एम राइटिंग द जर्नल पेपर्स ऑफ 70s आर मच 90s एंड समथिंग लाइक दैट. और पंजाब का तो ऐसे बेड़ा गर्क हो चुका है. इंडिया इज रियली प्रोग्रेसिंग, देयर इज अ रेनेसांस की राइट ऑफ द सिंग वो आ रहा है इंडिया में. बट सिक्खी का तो इन्होंने बिल्कुल गला उतार दिया भैया. कोई उनकी कोई चीज ही नहीं है. जो बंदों ने भी बहादुरी से किया ना कि उन्होंने 60s 80s 90s में किया हुआ है, वहाँ सारे बुढ़े हो गए. बहुत सारों से मैं टच में भी हूँ पब्लिक, क्योंकि इट विल ब्रिंग सो मच ऑन दैट. बट दे आर द लास्ट जनरेशन कि जिनको कुछ आता जाता था, जो सही में कोई स्कॉलर थे. अब तो ऐसे बारे उनके बारे में मैं क्या ही बताऊं, वो दे आर क्लाउन्स बेसिकली. और उनमें से भी जो बुड्ढे हैं 70 80 साल के, वो जो 20, वो ज्यादातर ने कॉम्प्रोमाइज कर दिया क्योंकि जवानी थी उनमें. आज से 30 साल पहले वो 40-50 साल के थे, उनमें जवानी थी, वो लड़ गए. उनका मटेरियल पढ़ो ना कि जैसे 80s 90s में वो क्या लिख रहे थे खालिस्तान के बारे में या पंजाब की हिस्ट्री के बारे में, वो आप हो जाएंगे. आज वो देखो तो वो पता नहीं वायर के जर्नलिस्ट की तरह वो लिखना शुरू कर देते हैं. एंड इट इज सो सैड, मैं उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि उन्होंने एक टाइम पे मुझे भी इंस्पायर किया कि नहीं उन्होंने किया हुआ है. बट ये देखो, दे आर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स दैट आर राइटिंग. वो पहले थे, उनमें होता है इंस्पिरेशन थी कि हम 30-40 से हम दुनिया से लड़ जाएंगे. आज उनको लगता बीवी बच्चे हैं, मैं 80 साल को, मेरे ये यहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो जाएगी मेरी ऑफिस के बाद, मेरे घर के ऊपर ये अंडे मारेंगे, मेरे गुरुद्वारे में हमारे खिलाफ वो फतवे निकालेंगे. वो कहते चलो जी, जो 5-10 साल है उसको शांति से निकालो. वो सारा का स्कॉलरशिप खत्म ही होगी भैया.
तो ये कोई 1980 में नहीं आया जो आप कह रहे हो. This is just not true. And about Sikhism, it has just like plummeted the intellectual tradition, the quality of the intellectual output. And anybody who has to write actually has to go like 50 years to actually like, you know, get the other side and make something really scholarly. So that's what I wanted to say. Yeah, thank you, Puneet. Abaji here. Abaji, welcome. I added you to the speakers. Yeah, anybody else have any questions? Please go ahead. Yeah, just a question on the history of Guru Gobind Singh Sikh Gurus Maharaj. There was some work, a little bit work here. मैं खान मार्केट गया था, मैं किताब देने देखे थे. I think I did get a book and I wanted to give a gift to someone. But there is not so much of a literature. बातें इतनी सुनने में आती हैं कि जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज का यहाँ इतनी dense history थी, इतिहास था, fast moving, very fast moving. So it can become a spellbinding book. The book is properly authored. It can gain a lot of traction. पर इस तरह की मुझे तो कोई किताब करम भाई, आप ये देखो जो ग्रंथ है, हाँ, ये जो इतना बड़ा ग्रंथ है हमारे ग्रंथ साहब है, इसके हैं 1430 पन्ने. ठीक है जी. Yeah. अब जो दशम ग्रंथ है, जो गुरु गोबिंद सिंह जी की बाणी है, अब उसके तो इन्होंने कितनी सारी चीजें निकाल दी हैं. अब वो जो है उसके 1428 मतलब उसी के बराबर ही लगा 1400 पन्ने, और जो उन्होंने लिखा हुआ वो कब, मतलब इतनी रेंज है उसके So अंदर. how do you find out if these miscreants have taken some pages away? आप किसी बुक से कंपेयर करते हो इसको? किससे कंपेयर करते हो? पुराना हाँ, कोई हाँ, बुक ये आपके पास? अजय हाँ, मैं आपको ये देखो ना, इसके ऊपर जैसे अभी ये जो मैं ये आप फरमाई गई है, तो गुरु गोबिंद ये जो था 1920 से पहले जब से एसजीपीसी नहीं आ गई, सारे मानते थे कि हाँ ये दसम गुरु की बाणी है, बट उसमें सारे पुराणों का ही वर्णन है. तो आप पुराणों को कैसे मान लोगे भैया, ये अगर गुरु की बाणी है तो उन्होंने कह दिया नहीं, इसके ऊपर बात ही मत करो. तो 100 साल से एसजीपीसी ने स्कॉलरशिप स्टॉप की हुई है दसम ग्रंथ पे. और ये जो मैं आपको बताऊं, जैसे अब ये 1950 में 55 में एक बंदे ने पीएचडी थीसिस की थी, उस बंदे का नाम है रतन सिंह जग्गी. वो कहीं नहीं मिलेगी, वो मेरे को अगर आपको कोई ढूंढोगे ना, चिराग ढूंढ के आपको नहीं मिलेगी पूरी दुनिया के अंदर वो किताब. उसका मैंने एक कॉपी निकाल के, अब ये खालिस्तानी भी उस दिन कोई फोटो दिखा रहे थे, ये नहीं बताया कि पुनीत सानी की टेलीग्राम. just a philosophical question on Guru Granth Sahib. Guru Granth Sahib is considered as a live book. ठीक है? Hey, Karanveer, can I interject? So, yeah. Puneet Bhaiya, you were just talking about Ratan Singh Jaggi. Can you finish that thought? If that would be okay. हाँ जी, मैं बता रहा हूँ. तो उसने 1955 में थीसिस लिखी थी. उसने क्या किया, जैसे ये होता ना कि उसने बेसिकली जो क्या कहते हैं, जो बहुत सारी वो थी, जैसे दसम ग्रंथ की कृतियां थी, तो एक संगरूर की कॉपी है, एक पटना साहब की कॉपी है. तो देखिए जो वो है एक जो गुरु ग्रंथ साहब है, दैट्स एन एंथोलॉजी कि बहुत सारे संतों की मिश्रण की बानी है, बट वो सारी एक सारी है, तो उसको रागों में बांटा हुआ है. जो दसम ग्रंथ है, दैट इज एन ओमनीबुस. मतलब ओमनीबुस का क्या मतलब होता है कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी बुक्स. तो उसने रतन सिंह जग्गी ने क्या दिखाया अपनी पीएचडी थीसिस में, जो ये करके ले रहे थे, वो मेरे टेलीग्राम के चैनल पे मैंने उसकी खुद अपने हाथ से उसका पीडीएफ बना के अपलोड किया था. कि जो जैसे संगरूर पटना ना, एक दो है, क्योंकि वो दैट वाज एन इवॉल्विंग बुक, क्योंकि गुरु जंग लड़ रहे हैं और मतलब इधर उधर जा रहे हैं, तो वो मतलब बन रही थी, ये नहीं कि एक टाइम पे बन के लिख दिया. सो एज हिज लाइफ वाज प्रोग्रेसिंग, मोर एंड मोर वाज बीइंग रिटन, बट देयर इज एक्चुअली अ लॉट ऑफ कंसिस्टेंसी. तो आपको सीक्वेंस में थोड़ा इधर उधर मिल जाता है कि एक सेक्शन मान लो कभी के नीचे रेंज हो गया, बट एक्चुअली दैट बुक, ये जो एसडीपी ने बकवास फैलाई है, दैट डिफरेंट, देयर इज अ लॉट ऑफ कंसिस्टेंसी इन इट. तो जैसे एक मान लो कि वो जो है अपना कि उग्रदंती बाणी है, दैट्स इन पटना बीट एंड इट्स नॉट इन सम अदर बीट्स, बट दैट जो सीक्वेंसिंग इधर उधर है, बट जो कंटेंट्स हैं कि जो मेन कंटेंट्स है, जाप हो गया, 24 अवतार हो गया, चंडी चरित्र हो गया, देयर इज एन अमेजिंग लाइक कोऑर्डिनेशन. बट अगेन 100 साल से उसके ऊपर है नहीं. और मुझे भी लगता है कि गुरु ने भाई कहाँ के मेटाफोर दिए हुए हैं, और उनको पर्शियन की इतनी मास्टरी थी, और वो नए नए वर्ड बना, जैसे एक नियोलॉजिज्म होता है. नियोलॉजिज्म का क्या मतलब होता है, दो वर्ड को फ्यूज करके आप एक नया वर्ड बना दो, क्योंकि his like mythological lenses from the Hindu Purans to like the Persian Shahnameh, तो वो एक नए एक्सप्रेशन के लिए नया वर्ड कर देते हैं. तो भाई वो कभी है नहीं. इट्स एक्चुअली माय ड्रीम टू someday be like write a authoritative क्या कहते हैं English translation of Dasam Granth, and maybe if I live 20-25 years and I'll do it, but there is nothing like that.
So I hope I answered the question. Thank you, Ji. Yeah, thank you, Sandeep Puneet. bhaiya, Sandeep bhaiya, I think Karamveer Ji had a question on Guru Granth Sahib Ji. Yeah, Karavir, you want to go ahead and ask the question, then I'll go to Yeah, Abaji. my question was, no, but he answered that he Okay. is get different sources to compare the notes. How does he compare the notes? जो पुराना था, जो पेजेस मिसिंग है, जो ये एडिट कर रहे हैं. दूसरा, या थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग, मेरे को याद आ गया. मैं ये कह रहा था कि सिंस गुरु ग्रंथ साहिब इज अ लाइव बुक, okay, why can't it be made more stoic? Why can't more stuff be added in it? Why can't it be supplemented? Since it's a live book, it's not a कोई कुरान शरीफ थोड़ा ना है, वो हो गई, कहानी खत्म हो गई. या कहीं से it's a live book, and that was not supposed to be the end of conversation. Is that what it ये is? कन्वर्ट डिफरेंट है. देखिए आप जैसे ना मतलब कुरान तो बेसिकली I hope I don't hurt any of my Muslim friends, but it's very superficial. इसमें कोई ज्यादा है नहीं. बाइबल एक्चुअली, तो बाइबल में क्या है, बाइबल हैज बीन रिटन एंड री रिटन अगेन. सो उसमें क्या है, स्टोरीज हैं, जैसे छोटी छोटी मान लो आपकी दंत कथा है, तो उसको दोबारा रीराइट किया जा रहा है, उसके अंदर डेप्थ आ रही है, कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रही है. जो गुरु ग्रंथ साहब है वो बिल्कुल अलग चीज है, भी समझ नहीं आया. वो तो भक्ति है भैया, जैसे मीरा की भक्ति है. अब की एक महान संत आया, उसने गाया और इसको एक ब्यूटीफुली आपने रागों में बांध दिया और उसके अंदर आपने एक कंसिस्टेंसी भी क्रिएट कर दी. तो ये कोई इंटेलेक्चुअल नहीं, द्वारे में जाओ तो आपको स्पिरिचुअल शांति मिलती है कि उसमें भक्ति है, भक्ति का एक ट्रेडिशन है और वो ट्रेडिशन सारा हो गया. तो उसमें ये थोड़ी ये कॉमिक है, इसको आगे आगे अगला क्या होगा, अगला क्या होगा. इट्स ये बिल्कुल, ये अंग्रेज कभी समझ ही नहीं सका. जैसे अंग्रेज ने जो क्रिटिसिज्म की, वो कहता है इन्होंने जी पता नहीं कैसी किताब बना रखी है, एक ही बात बार बार बोली जाती है. भाई ओ भाई, ये तो यही कहेंगे कि भाई अगर राम को भजो, राम को भजो, घूम फिर के यहीं पे आ जाएगी हरि को, क्योंकि ये तो भजन वाली बात है ना. ये तो इसमें वो क्या कहते हैं, जो भक्ति है, ये भक्ति ये वो कहानी में थोड़ा है. हाँ, कोई पुराणिक रेफरेंस यूज कर देते हैं, अजामिल की बात कर देते हैं, वो क्या कहते हैं, गजेंद्र का देते हैं, कभी वो जो दर्शन का रेफरेंस दे देते हैं कि अलग अलग तरीके से उसको समझाते हैं. हाँ जी, सुदामा का भी है. हाँ जी, हाँ जी, भरा पड़ा है जी. आप कहीं से भी उसको उठा लो. मैं तो 1430 है, मैं तो कहता हूँ कोई रैंडम नंबर बोलो और उसको अभी जाके खोल लो, कम से कम आधा दर्जन आपको हरि के उसके हर पन्ने पे मिलेंगे. वो तो है ही है. तो वो 1400 अगर 30 लिखे गए हैं, तो जहाँ से मिल सकते हैं वहां से उन्होंने डाला हुआ है, उस तरीके से उसको समझाया हुआ सारा का सारा. तो एक हो गया, मतलब उसमें कंसिस्टेंसी है. ये अब जैसे मैं आपको एक छोटी सी बताता हूँ वीर जी, जैसे जो जो नौवे गुरु हैं, सिर्फ उन्होंने लिखा है राग जय जयवंती के अंदर. और मेरे हिसाब से अगर किसी को गुरबाणी में घुसना है या शुरू करना है, तो वो सीधा यूट्यूब पे जाए और सीधा गुरु तेग बहादुर की बाणी सुने, क्योंकि वो ऑलमोस्ट हिंदी जैसे है, ऑलमोस्ट मतलब क्लोजेस्ट टू हिंदी है. बिल्कुल आपको अपने कानों से समझ आ जाएगा क्या किया जाएगा. थोड़ा वो पुराणों का रेफरेंस देते हैं, तो कभी आपको नहीं पता तो प्रॉब्लम होगी, बट बिल्कुल सरल भाषा है और इतना उसमें वीरता है और उसमें वैराग्य है. जैसे उन्होंने उनके कई शब्द हैं राग जय जयवंती के अंदर, जो किसी के भी नहीं है. अब जो राग जय जयवंती है, वो इतना मुश्किल है, मतलब आपको बहुत कम बंदे मिलेंगे. जैसे एक नुसरत फतेह अली खान ने किया था राग जय जयवंती में. राग जय जयवंती से आपको कैसा अंडरस्टैंडिंग आती है, जैसे आप अगर उसको सुनोगे ना, कि आज जैसे मान लो आपको धर्म युद्ध में जाना है और धर्म युद्ध में आप गए और आप धर्म युद्ध जीत गए, ठीक है, तो आपको खुशी है कि हाँ भैया ये धर्म और ये धर्म की जीत होगी. बट उसमें आपके बेटे की वीरगति होगी, तो आप में वैराग्य भी है कि भैया ये सारा कुछ जीत के भी मैंने क्या जीता. तो भाव आता है भैया, कोई ये नहीं आता कि कोई भी आके उसमें कोई कर दे. और एक ये ट्रेडिशन होता है. तो ये एक तो ये स्पिरिचुअल सुकून के लिए है ये बेसिकली, वो आपको मिल रहा, तो इसमें क्यों ऐड करना चाहते हैं. तो आई होप आई आंसर्ड द क्वेश्चन. Yeah, thank you, Puneet. Abaji, go ahead. Yeah. First of all, welcome back, Puneet. मैं तो अभी I'm still like not recovered from the COVID, तो और मेरा खुद का अकाउंट आज ही रिस्टोर हुआ है. So मैं गुरु ग्रंथ साहब पे क्वेश्चन ही पूछूंगी. I have another things to ask, lot of things I have to ask the Puneet. पुनीत, आपने अभी बोला कि एक जो आप बता रहे थे कि उन्होंने हिंदी का वो बहुत कॉम्बिनेशन लाइक नियरेस्ट है, अगर मेरे को समझ आ रहा है तो. तो एक मुझे पूछना था, दो इट इज अ गुरमुखी, बट अगर हम लोग
एक सुनते हैं तो एक बहुत ब्रज का, मैथिली का, क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट लोगों के लैंग्वेज मतलब भाषाएं हैं जो एक जिसको कह सकते हैं कि डाली हुई है। जब ये सारा कुछ है तो एक जो ये टिपिकल कमिंग बैक टू द टुडेज खालिस्तानी या जो टुडेज मैक्सिक जिनको हम कहते हैं, वो इस चीज को लाइक कि हिंदी नहीं बोलनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, जबकि ग्रंथ साहब के अंदर जो रीजनल लैंग्वेजेस का लिखा हुआ है, इतना सारा रीजनल लैंग्वेजेस जो ओरिजिनल लैंग्वेजेस हैं, आप सब मतलब इट इज लाइक डिनाइंग, जिसको कहते हैं ना बंदे को अपनी होंद डिनाई करना। तो आप इसको कैसे लाइक इफ आई हैव टू आस्क यू द क्वेश्चन, आप इसको कैसे डिस्क्राइब करोगे फॉर अननोन पर्सन जिसको कुछ नहीं पता इस सब का? थैंक यू। नहीं, ये मैं बता रहा हूँ ना, ये बिल्कुल पाकिस्तानी है जी। पाकिस्तानी भी यही है ना, उनको आइडेंटिटी क्राइसिस है। तो वो अगर कहीं से भी खरोचेंगे, उनको ये दिख जाएगा कि भैया हम भी हिंदू होते थे थोड़े टाइम पहले, और वो सारा तो अपनी उसको होंद को डिनाई करने के लिए उन्होंने पंजाबी को लात मार के वो उर्दू बोलना उन्होंने शुरू कर दिया, और वो पता नहीं क्या मजाका खेत तरीके से वो बोली जाते हैं। तो बिल्कुल सेम टू सेम है, इंसान इंसान ही रहता है। तो ये जो मारी जाते हैं, अब इनको ये पढ़ी जा रहे हैं, इसको किसी चीज का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे वो भी मैंने वो दिखाया था कि वो गुरु तेग बहादुर जी का है, जैसे अब आप देखो, अगर आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फर्स्ट लाइन में बल छुटक्यो बंधन पड़े कछु ना होत उपाय, कह नानक अब होठ हरि की गज्जियो होत सहाय। अब ये किसी को समझ नहीं, अब वो कह रहे हैं कि भैया मेरे साथ बंधन पड़ गया, मेरा सारा बल चला गया, अब मेरे से कुछ उपाय नहीं हो रहा। अब जो हरि है वो मेरे को ऐसे बचाए जैसे गज को बचाए। अब ये जो हरि और गज का है, ये भागवत पुराण से आता है कि गजराज को वो जो हरि विष्णु ने अपने गरु, अब ये अब वो अब ग्रंथ साहब की ट्रांसलेशन पढ़ो, उसके अंदर लिखा हुआ है सेव मी लाइक द लॉर्ड सेव द एलिफेंट। तो अब इसमें अब बताओ इनको क्या ही अक्ल होगी, क्या इनको स्पिरिचुअलिटी पता होगी, क्या इनको अपना धर्म पता होगा। तो ऐसे नालायक है और वो हर जनरेशन से और नालायक हो जाते हैं। तो ये तो मैं ये बता रहा हूँ ना, ये तो है ही नहीं। मतलब आप कोई चीज़ उठा के देख लो, और मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, जो भी है कि ये तो अपनी इन्होंने पॉलिटिक्स का बना लिया, कोई नहीं है। बट जो हिंदू है, जिसको कोई वोट-वोट नहीं लेना, जो सही में पढ़ रहा है, इसीलिए वो ये ग्रंथ और गुरुद्वारों को छोड़ ही नहीं पा रहा। क्योंकि जो इसमें रस है, वो ये थोड़ा ना होता है कि जी वेदों में लिखा है, वो भाई किसी में कहीं में क्या लिखा हुआ है। तुम्हें तो ये है ना कि तुम्हें तो अपनी भाषा में जो समझ आ जाए, वो समझ आ जाए। अब कोई उसको उठा के, कोई वो ठाकरे की औलादे जाके कहना शुरू कर दें कि हम सिर्फ ये शिवाजी महाराज हमारे हैं, तुम्हारे नहीं है, तुम ऐसे थोड़ा ना हो जाएगा। या कोई वो वहाँ पे जाके कोई वो अपना बंगाल में जाके कहे ये हमारे हैं, उसका जो विवेकानंद के गुरु हैं उनका क्या रामकृष्ण परमहंस है। तो ही इज अ कल्चरल आइकन ऑफ बंगाल। उसको जाके अब कोई कहना शुरू कर दे ये जी हमारे हैं और कोई नहीं है। यही है, जो बंदा उससे जुड़ा हुआ है, उसको वो पूरी भक्ति का रस, उसको उपनिषदों का ज्ञान है, वो उसको अपनी लोक भाषा में मिल रहा है। तो उसको गालियाँ भी मिलती है, वो नहीं छोड़ पा रहा। क्योंकि उसको समझ आ रहा है कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। इन नालायकों को तो कुछ पता ही नहीं है कि भाई वो जो जैसे चौपाई साहब है, अगर आप अमृतधारी हो तो रोज आपको वो बाणी पढ़नी है। मतलब वो पंचवाणियों का है। उसके अंदर लिखा हुआ है कि संवत 17 सहस फणीजे। अब ये संवत मतलब संवत, 17 सहस, सहस 100 को कहते हैं। फिर वो पुन अर्ध सहस पण 3, मतलब जैसे ये जो है ना, ये पूरा जैसे एग्जैक्ट कोई पंडित लिख रहा हो हिंदू तिथि, वैसे लिखी हुई है कि 1753 विक्रमी ईस्वी भाद्रव के 8वीं सुदी की रविवार को सुतुद्री के, अब बताओ सुतुद्री बोली जा रही है। उस जमाने में कोई सुतुद्री बोलता है? वो तो सतलुज को, आप बताओ आपने कभी जिंदगी में आबादी दी, आप पंजाब से हो, आपने कोई बंदा सुना है जो सतलुज को सुतुद्री कह रहा है? गुरु गोबिंद सिंह जी कह रहे हैं कि मैं इसको सुतुद्री के किनारे, ये विक्रम संवत को मैं लिख रहा हूँ, ये नालायक कहीं जाते हैं कोई नानकशाही कैलेंडर बना दो। और ये देखो कैसी बेवकूफ वाली बात है। कोई किसी को कहो ये नानकशाही, किसी को समझ आएगा भाई? गुरु ने भी चाहे विक्रमी संवत लिखा, आज तो हम सारे अपने आप को डेट को ऑर्गेनाइज ऑर्डर कर रहे हैं ना। डेट का है कि आप अपने टाइम को कोऑर्डिनेट करो। तो विक्रमी, चाहे हमारे भी सारे विक्रमी लिखे हुए हैं, ठीक है, सारा का सारा मॉडर्न डेट में करिए। ये कहते हैं नहीं जी, हम वो अलग करने के लिए हम नानकशाही बनाएंगे। बताओ किसी को समझ आ गया? आई डोंट नो। फिर बाबा जी मैं कुड़ता भी हूँ अंदर से, और मेरी फिर बीवी भी कहती है कि आप अंकल हो गए हो, आप बस कुड़ते रहते हो। तो मतलब आई डोंट नो ये क्या करना चाहते हैं। तो समझ ही नहीं आता, कोई हंसी भी आती है, रोना भी आता है कि क्या क्या ये मरी जाते हैं, इनको शर्म भी नहीं आती। और पता नहीं ये क्या कहते हैं, वो उर्दू में कहते हैं बेकार मुआश कुछ किया कर, कपड़े उधेड़ उधेड़ सिया कर। तो मेरे ख्याल ये उसी काम में लगे हुए हैं ये बस, और इनको कुछ आता जाता है नहीं। Yeah, thank you, Puneet. Yeah, I see a lot of hands. Before I go to them,
Babuji, I tried to add you again. I'm not able to. And also, DPRG, same problem with you. Please delete your app, reinstall. Maybe that will fix the problem. I'll try. Uh, I even offered you co-host to both of you. Still, you're not able to come up. So yeah, please try this last thing: delete and reinstall, and then I'll add you. Miniji, then I'll go to Bindiwala and Satya. Miniji, go ahead, ma'am. Sure. Thank you. पुनीत, मैं ना एक हरनेक सिंह नेगी है उनको सुनती हूँ। वो किसी किताब के बारे में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। वो किसी किताब के बारे में मेंशन करते हैं कि दे डोंट बिलीव इन दैट। दशम गुरु में पता नहीं शायद, और दशम गुरु जो है वो गुरु गोविंद साहिब ने लिखी हुई है कि किसी और ने उनको उसको लिखा है। पहला क्वेश्चन तो ये है। I'm just asking, and I will ask the next question related to that. Is this written by Guru Sahib, Dasham Guru, Dasham Granth? देखो मिनी जी, मैं जैसे ना आई कैन नॉट डेफिनेटली से कि मैं कोई इसका स्कॉलर नहीं हूँ, और मैं को आप बताऊँ ना, देखो लोग मुझसे पूछते भी, मैं पहले ही कन्फेस कर देता हूँ कि भाई मैं इसके अंदर सिर्फ 2 साल से घुसा हूँ, जब इन बदमाशों ने 26 जनवरी के ऊपर अटैक किया। अदरवाइज मेरा बहुत पासिंग इंटरेस्ट था, मेरे और ज्यादा इंटरेस्ट थे, ठीक है। तो मैंने इसको बहुत कम टाइम से पढ़ रहा हूँ, और दूसरा मेरा कोई इंटर नहीं है, तो मैं अपनी अक्ल से जो मुझे थोड़ा बहुत समझ आता है तो मैं बोल रहा हूँ, तो मैं कभी गलत भी हो सकता हूँ। बट मिनी जी, मैं आपको ये बताता हूँ, एसजीपीसी से पहले ये मानना था ये सारी गुरु सिंह जी की बाणी है, तो अब ये कहने के लिए, बट उसमें सारा का सारा हिंदू पुराण ही भरे पड़े हैं, तो ये इसको अलग करने के लिए ये इन्होंने कहा जी नहीं, ये गुरु की बाणी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, कुछ और भी होंगे। बट उससे पहले जो मैं बता रहा हूँ ना कि जो ये अंडरस्टैंडिंग थी, ये यही अंडरस्टैंडिंग थी, ये सारी की सारी गुरु गोविंद सिंह जी की ही बाणी है। और अभी पीछे एक वो था, उसका नाम क्या, उसका नाम भूल गया मैं, वो के से कोई के सिंह था, वो अपना यूके का बंदा है, कमलप्रीत या कुछ, मैं नाम भूल गया। उसने पीएचडी थीसिस की, उसकी भी यही है कि ये सारी की सारी गुरु गोविंद सिंह जी की बाणी है, जो मेरी है। बट ऑब्वियसली मतलब इसके ऊपर तो लगेंगे जी 10 साल, और वो आपको सारी लैंग्वेज मास्टर करनी पड़ेगी कि मैं ठप्पा मार के कह दूं कि मैं पुनीत सिंह कहता हूँ कि ऐसा है, वो मैं नहीं कह सकता। बट हाँ, जी, कि ये बिल्कुल। अंडरस्टैंडिंग थी कम्युनिटी की। बट ये जो हरनेक सिंह है ना, मैं उसको बहुत बंदे पूछते हैं, देखो तो एक सीधी सी बात हो, वो जो बंदा है वो बहादुर है, ठीक है, वो ये खालिस्तानियों से डरता नहीं, उसके ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ, और वो कि बंदा कोई इंटेलिजेंट हो, उसकी अगर बंदा चाहे कोई भी हो, चाहे मेरे से बिल्कुल उल्ट भी हो, और वो नॉन वायलेंट है, और वो अपनी वैल्यूज के लिए सफर करने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डालने को तैयार है, तो उस बंदे को सदा नमस्कार है। बट उस बंदे का इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत छोटा है, उसको समझ ही नहीं है वो क्या कह रहा है, कि ये जी ये सब ये जी ये ब्राह्मण कर गया, ये कर गया, इसके अंदर ये वो, तो उसका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है ना, वो बहुत सताई लेवल का है, उसको Yes, ये है। हाँ जी। I noticed that he criticized Bhindranwala very, very openly and in harsh words. All Bhindranwala supporters, Khalistani, he criticized, and but at the same time, I see that he has one thing in his mind, that Hindus and Sikhs are different, so they are separate qawm. Um, so I noticed that, but I it's okay. That is his नहीं point of view. नहीं मिनी जी, मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ बिल्कुल उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसे उसने पढ़ा भी हुआ है ना, यू जस्ट लिसन टू हिम, मतलब वो जो है वो कोई हाँ, मैं बुद्धिजीवी नहीं एक है। बात करने लगी थी हाँ जी। कि उसने एक जगह पे कि जो किताब है उसमें एक जगह पे लिखा है कि गुरु गोविंद साहिब ने ओपियम कंज्यूम किया और किया, तो उसका जो तर्क जो दिया गया है वो ये है कि उस वक्त वॉर में ये लोग इतने ज्यादा एनग्रोस थे, इनको इतना ज्यादा चोटें लगती थी, और उस वक्त कोई कि मैंने ही दिया है। पेन हाँ किलर्स, जी, ये मेरा हाँ, ही पेन आपको, आई किलर्स, डोंट। यस, आई हाँ हर्ड जी, दैट, ये मिनी एंड जी इट ये मेक्स देखो, सेंस, अच्छा इट मेक्स सेंस, यस। नहीं मिनी जी, मैं आपको बता रहा हूँ ना, यही था, ये मेरे को, मैं ये बता रहा हूँ, इसका इंटेलेक्चुअल लेवल इतना छोटा है, ने एक निकाल के कह दिया, ओ देखो जी ये अफीम पीते थे, अफीम पीते थे। अब ये मैंने बताया, आई डोंट नो, मैंने किसी और से नहीं सुना हुआ, ये इस बेवकूफ को इतनी, अब जैसे जो शस्त्र विद्या है, कोई अपने पैदा थोड़ा ना हुए हैं, ये तो सीखनी पड़ती है। ये जो सारी शस्त्र विद्या थी, ये सारी की सारी राजपूतों के पास थी, राजपूतों की आज भी शस्त्र विद्या है,
कि जैसे वो बैटल में जाते हैं ना, और खासकर जैसे सुसाइडल बैटल में जाते लेके जाते थे, अफीम से आपका डर खत्म हो जाता है। उस टाइम पेन किलर है, ये तो बहुत मेरे ख्याल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये रिसेंट है जी। ये जो आपने ये क्या किया है, ये तो कुछ होता ही नहीं था। तो मान लो कोई किसी का आप ना कोई ये जो सिविल वॉर की आप मूवीज देखो, कि मान लो आपके पैर पे छोटी सी चोट लगी तो आपका पैर काटना पड़ेगा। वो कैसे काटोगे? आरे से काटोगे। आप सोचो ये बात, कोई पेन किलर नहीं है अमेरिकन सिविल वॉर में। ये जो गुरु जो कह रहे हैं अमेरिकन सिविल वॉर, तो अब वो ये है कि ये सरसों कुछ के अंदर गुरु महाराज तो उससे भी दशकों पहले की बात कर रहे हैं। और ये तो अमेरिका था भैया, ये बहुत रिच कंट्री थी, हमारे पास क्या था, हम तो उनसे कह रहे हैं। तो वहां पे तो यही है कि हाँ जी, किसी के पैर पे चीरा पड़ गया, इसको काट दो। कोई कैसे काट दो? या तो शराब पिला दो भैया। मैं आपको ये बता रहा हूँ, उसका ना कोई दिमाग ही है नहीं। उसको मतलब जैसे एक उसने कह दिया जी कि वो पता नहीं कोई माँ भागो थी। अब ये चलो, ये जो मैं आपको कई भी बात होगी ना कि ये दिगंबर की अपनी परंपरा होती है और गुरु गोविंद सिंह जी सारे परंपराओं को जोड़ रहे थे। अब ये कोई क्या करता है, उसकी सी क्लिप निकाल के उसका कर देता है। पर मैं ये बता रहा हूँ, उसकी बहुत जैसे होता है ना पेंडू दिमाग है, उसका कोई इंटेलेक्चुअल लेवल ही नहीं है। मतलब मुझे लगता है यार, बट एनीवेज, मैं इंटेलेक्चुअल लेवल से ज्यादा मैं एक सच्चे आदमी की और बहादुर आदमी की कदर करता हूँ, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ कहता नहीं। बट बाकी तो उसका दिमाग इतना, वो पाठशाला को भी नहीं पढ़ा सकता। तो आई होप आई आंसर। I totally agree with that. I think he वो किताब की अपनी ग्रंथ जी की जो क्रिटिसिज्म करता है, उसको ना मानने की बात करता है, उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है ज्यादा कि उसके, क्योंकि जो गुरु थे वो लड़े तो उन उन उनमें अध्यात्म का जो बल था, लेकिन उनकी सेना जो थी उसको तो हैंडल करना था ना कि उनकी पेन किलर्स या उनको, या तो वो किस तरह से हैंडल करें। So this was not like a addiction, but it was a more like a medicine used. नहीं नहीं, ये Yeah. असल में मैं आपको बता रहा हूँ मिनी जी, ये जो आपने बात की ना, ये आई डोंट नो, आप इसका सोर्स कीजिए। आई एम सेइंग ये सोर्स मेरे से निकला है, क्योंकि जब ये खुद इतना नालायक है हरनेक सिंह, और एसजीपीसी भी इतना नालायक है। जब इसने कंट्रोवर्सी बना दी ना कि देखो जी वो गुरु तो अफीम लेते थे जी, तो एसजीपीसी इसका जवाब दो। एसजीपीसी के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि एसजीपीसी को भी हिस्ट्री का कुछ पता ही नहीं। तो एसजीपीसी इधर उधर भाग रही थी जी, हमारे ये इनके बारे में वीर सिंह ने भी कहा जी बात मत करो, इनसे तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। तो वो क्या करता है, एसजीपीसी के ऊपर चढ़ा क्वेश्चन पूछता है, बट उसमें कोई है ही नहीं, बट एसजीपीसी के पास जवाब नहीं होता। ये जो आप बात कर रहे हो ना, ये पेन किलर, ये वॉरफेयर, ये मैंने फिर इसका कोई मेरे से पूछ रहा था, फिर मैंने Yes, दिया। I think I heard it from you. राइट। मुझे पूरी तरह से याद नहीं आ रहा था, but I agree with you. You were हाँ, the तो इनको कोई person कॉन्टेक्स्ट who वर्ड है, क्या clarified. हिस्ट्री है, क्या मिथ होती है, क्या मतलब उसको किया जाता है, इनको वो तो है नहीं। बट एनीवेज, मैं आई डोंट वांट टू गेट इनटू क्रिटिसिज्म स्पेशली ऑफ अ गाय आई रिस्पेक्ट, बिकॉज़ ही इज अ वेरी ब्रेव मैन। अब जैसे ये जो भी है, I वो जो totally अपना, agree. जैसे अपना ये मनिंदर सिंह बिट्टा है जो टेररिज्म के खिलाफ लड़ा, वो कोई बुद्धिजीवी थोड़ा ना, बट वो कितना बहादुर आदमी है, उसको सलामी सलाम है भैया। तो मैं तो कहता हूँ ये ऐसे 100 इंटेलेक्चुअलों से एक बंदा है जो अपना अपने देशभक्त है, और जो मतलब अपनी जान जोखिम पे लगा सकता है, और जो सच्चा आदमी है उसका ज्यादा सत्कार करना चाहिए। सो आई रिस्पेक्ट हिम। मैं उसका कोई वो नहीं बोलता, अगर कोई मुझे मिलेगा तो मैं उसको नीचे होके ही मिलूंगा, हरनेक सिंह को। बट उसको कोई मतलब उसका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत ज्यादा लिमिटेड है, बहुत ज्यादा लिमिटेड। Because he's not open to the other side of the dialogue. मुझे ऐसा लगता है नहीं, कि मिनी जी, कोई पढ़ेंगे तो आपका ओपन होगा ना। वो आप जैसे कोई आपको पता लग जाता है कि ये बंदे ने कितना, क्योंकि आप किसी चीज की जो आपकी नॉलेज की लिमिट है उसको आप वहां पे पढ़ोगे, फिर वो पुश होगी ना। तो वो जो वो बोलता है, मतलब जैसे टकसाल और मिशनरी की जो किताबें कुतुबें पढ़ के वो उसका छोटा मोटा लेवल है, उसको तो कोई समझ समझ ही नहीं है। उसने कोई वर्ड, मतलब ये जो कोई कही नहीं कि हिस्ट्री क्या होती थी, वॉरफेयर क्या होती थी, कि अध्यात्म क्या है, और मतलब ये क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन क्या, उसको कुछ कुछ। वो तो जो टकसाल की किताबें बुक, वो जो बुकलेट सी आती है, वो मेरे ख्याल उसने पढ़ी हुई है। Yeah. Next. Yeah, Sachin, hang on for a second. A lot of other people have raised their hands. Let me go to Bindiwala, then Satya, then Sachin. Yeah, Bindiwala, go ahead. Ask a question. If you have a statement, please make sure it's a brief statement. Hi, thank you for giving me the mic. So first of all, my question is for the Puneet, and I respect you, brother, for your voice. And so my target is here only Khalistanis and the Sikh extremists.
And the thing is, I just saw some documents from SGPC as a Sikh Maryada, और उन्होंने कहा जो जितनी भी औरतें हैं और लड़कियां हैं वो मतलब जो डांस करती हैं और जो नाचती हैं, even in the marriage, like even in your personal marriage, if you're dancing, you are, so they are actually saying all the women as a prostitute. So uh, my concern is as a Punjabi Hindu, like why Sikhs are not rising their voices against अच्छा बिंदी वाले जी, मैं SGPC. आपका क्वेश्चन समझ गया, मैं इसको जवाब दूं। अब देखो, जो आपसे लेके भी आया हो ना, ये असल में मैंने इसको थोड़ा प्रमोट किया था, ठीक है। ये जो बंदे ने आपको बताया भी है, और इसने इससे पहले भी ये जब मर्यादा छापी थी तो मैंने इसको बताया भी, ये मर्यादा भाई ये कोई गुरुओं से नहीं आई हुई, ये 1950 से आई हुई है, ठीक है। अब आप जैसे आपका हैंडल बढ़ता है ना, एंड इट इज ह्यूमन नेचर कि आपको जिस पे आई बॉल्स दिखते हैं आप वही वही डाली जाते हो। अब एक बात मैं बता रहा हूँ, आप जैसे पंजाबी हिंदू हो, आप कितने पंजाबी सिखों को जानते होगे ना। आपको क्या लगता है कि सिखों की औरतें एम्पावर्ड नहीं है? मैं जितनी मैंने दिखी है तो हमारी तो भैया बहुत ज्यादा एम्पावर्ड है, सबसे ज्यादा एम्पावर्ड है। एक बात है जी, एक हम जैसे कोई जो हम कोई गेटो में भी नहीं रहते सिख, आप पूरी इंडिया में देखो वो सारे किसी हर जगह इंटीग्रेट हो जाते हैं। मैं आपको मैं तो सिख परिवार से हूँ ना, मेरे को पता है ये मर्यादा कहाँ से आई। मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ ना, हमारे घर में किसी को ये मर्यादा का पता है, मतलब ना कोई इसको फॉलो करता। अब वो जो अपने कमरे के अंदर बैठ के कोई मर्जी 25 साल अंग्रेज बैठा रहा, तब तो इन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद इन्होंने कमरे में जाके कुछ लिख दिया। ये तो है नहीं कि इन्होंने संगत से पूछा भाई बताओ भाई क्या क्या तुम्हारे ओपिनियन है और संगत का कोई पार्टिसिपेशन है। अब कोई नलायक जाके अपने कॉपी में लिख दे कुछ, कोई ये थोड़ा ना हम उसको फॉलो कर रहे हैं। अब जैसे आप बता रहे हो औरतें नाच रही, अब यहाँ पे कितने बैठे हैं, मैं सिर्फ नॉन पंजाबियों से पूछना चाहता हूँ कि वो भी कोई सिखों की शादी में गया तो उसने कोई लड़कियां नाचते नहीं देखी। अब ये मैं बता रहा हूँ ना कि भाई अगर कोई है ही नहीं तो अब जैसे अब उसमें गुरु ग्रंथ साहिब में मीरा जी की भी एग्जांपल दी गई है कि वो अपनी भक्ति रास में पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। एक तरीके से वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो हर चीज को गलत तरफ क्यों लेके जा रहे हैं। भाई आप फिर ये बात होगी भाई, आप जैसे पाकिस्तान के देख रहे हो ना। अब यार मैं वैसे आज मैं वो किसी बड़े रिस्पॉन्सिबल बंदे से बात कर रहा था, और यार ये पाकिस्तान देखो, ये हर दिवालिया ही हो गया। मैं आपको भिड्डी वाला जी आई डोंट थिंक पीपल हियर की अप्रिशिएट कि पंजाब की कैसे वो पाकिस्तान के कितने खस्ते हालत हैं। आप सोच ही नहीं सकते, मतलब वो बिल्कुल ही दिवालिया हो गए हैं, मतलब वो सड़कों पे आ गए हैं। और वो जो ये खालिस्तान रेफरेंडम हो रहा है उसके पीछे भागी जाते हैं। और तुम्हारे भाई तुम बिल्कुल तुम्हारे कपड़े बिकने पे आए हुए हैं, तुम्हारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, और तुम ये पता नहीं खालिस्तान रेफरेंडम कोई मजाक सी चीज है उसके पीछे भागी जा रहे हो। बट ये जो है ना, कोई एक नलायक हो जाता है, वो ISI या वही ये करी जाती है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें जैसे आप अगर पंजाबी हिंदू हो और ये इंडिया से बाहर जाओगे ना, हम कोई वो नहीं है कि जो हमें कोई हमारे हमने उसके हिसाब से या पंजाबी तो हम अपनी अपनी तौर से जीते हैं भैया। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जो मर्जी अपने फतवे मारी जाए, तो कोई सिख उससे जीता नहीं। 99.999% किसी को ये पता भी नहीं ये कोई मर्यादा है। किसी को ये मर्यादा दिखा के कि कहीं जो ये गहनी की या तो सिख इसको फॉलो करता हो, वो सिख को पता ही कख नहीं। वो SGPC ने अपने कमरे में जाके वो आपको, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये भिंडी वाला जी अभी मैंने लिखा है, आपको पता है SGPC ने बैन किया हुआ है कि औरत कीर्तन नहीं कर सकती दरबार साहब के अंदर। ये मर्यादा बनाई हुई है इन्होंने। हाँ जी, ये मैंने देखा है। हाँ जी, हाँ जी। ये अब ये मैं बताओ। हाँ दो जी, हाँ जी, पॉइंट्स बोलो। बोलना चाहूंगी कि एक तो हमारे गुरुओं ने कहा है कि ओनू को मंदा आखिया जित जन्ने रजान, मीनिंग उस लेडी को या वुमेन को क्यों गलत या गंदा या खराब कहें, जिन्होंने राजाओं को भी पैदा किया है, वो तो हो ही नहीं सकती। और क्या कहते हैं, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि आई थिंक इट्स इन मनुस्मृति, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तासु न पूज्यन्ते सर्वास्तु त्राफला क्रिया। तो आई मीन दोनों ही लाइक और हिंदू जो है वो धर्म है, सनातन धर्म, दोनों में ही औरतों को पूजा जाता है। या बहुत इसका ऊपर मतलब है मान कि दिया है। जहाँ स्त्री है, जहाँ नारी की स्त्री का पूजा, जहाँ सम्मान स्त्री की है, नारी की पूजा होती है, वहाँ भगवान हाँ, की पूजा होती है। हाँ और जी। जहाँ जहाँ और उनका अपमान होता है, वहाँ आप कितना ही नोबल काम कर लीजिए, वो सब का सब बिल्कुल लाइक इट वुड नॉट कम टू फ्रूशन। यही कहना अब चाहती मैं तो यही बता रहा हूँ, जैसे भिंडी वाला जी देखो, मैं किसी को दिमाग नहीं दे रहा, हर बंदे अपने से हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि आप ये देखो ना कि ये जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर चीज की बुराई होनी चाहिए, मैंने तो किसी से भी नहीं
कि मैंने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि किसी के ऊपर पर्दा डाला और सारे फैक्ट निकाल के दिए। बट ये जैसे ये सारा एसजीपीसी है। मैं ये बता रहा हूँ कि सिखों को पता ही नहीं है कि भैया ये क्या क्या हुआ वो साथ। तो और आपका एंड गेम क्या है? कि मतलब ये प्रॉब्लम तो है ही है पंजाब के अंदर। इसका सॉल्यूशन क्या है? डोंट ट्राई टू एलियनेट सिख, जिनकी कोई ज़्यादा गलती भी नहीं है भैया। ये और मैं आपको जैसे आप कभी देख इसकी चलो फिर ये फिर दूसरी डायरेक्शन में चली जाएगी। तो एसजीपीसी का ये है, अब ये जैसे ये रहत मर्यादा ये जो है ये क्लियर करना चाहिए। और मैं उसको जिस बंदे ने किया उसको मैंने पहले बताया था, तब वो समझ नहीं गया कि ये देखो जी ये सिखों में ये लिखा हो, ये ऐसा कोई फॉलो करता है भैया? आप अगर रहते हो, आप कोई एक सिख जानते हो कि वो ऐसा है जो ये मर्यादा से फॉलो कर रहा है? मैंने अभी वो पीछे दिखाया था जब शिवरात्रि थी, जो पंजाब के पिंडों में जो हैं, और मैं आपको ये बताऊँ जैसे ये खालिस्तानी जट्टों से प्रॉब्लम है ना, सिखों में जट जो हैं वो सबसे बड़े शिव भक्त हैं। ये मैंने दिखाया भिंडरांवाला के पिंड से दूर नहीं, उन्होंने वहाँ पे वो शिव मंदिर बनाया हुआ है, वहाँ पे वो क्या कहते हैं वो जो शिवाला मैनेज करते हैं। तो उनको कुछ पता ही नहीं। अब ये जो मैं बता रहा हूँ ना, जो एसजीपीसी की रहत मर्यादा है उसके हिसाब से एक बंदा सिख नहीं है। बट हम अपना ज़िंदगी जी जा रहे हैं, हम किसी को परेशान नहीं कर रहे। तो ये एसजीपीसी को ये है कि एक्सपोज़ किया जाए एंड जस्ट ट्राई टू बी केयरफुल कि ये जो है मैंने तो आज तक किया नहीं। इससे जो है वो जो ट्रेड है वो भी मेरे दुश्मन है, खालिस्तानी भी मेरे दुश्मन है, आरएसएस भी मुझसे परेशान है। मैंने तो कभी माना ही नहीं कि भैया हिंदू सिख कोई अलग है। ये जो है ना आरएसएस में कहने की ज़रूरत है और ये जो सारा है मैंने तो ये कहा भई ये सारे सनातनी है मेरे लिए और ये अलग-अलग करते रहे, मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं है। और जो खालिस्तानी है वो हमारा वो कॉमन एनिमी नहीं, हमारा बराबर का दुश्मन है। कि जितना इसने इट लाइक सो समटाइम्स इट हर्ट्स मी व्हेन मैं देखूं कि काम कर रहे हैं एंड लाइक दे आर जस्ट alienating Sikhs with some of their attacks and which is not helping. It will get you the eyeballs but it is not a productive way to do. Like इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टेप वन थिंकिंग। चलो इससे क्या हुआ, अगला क्या होगा, अगला क्या होगा। पंजाब में कोई शांति नहीं आ सकती कि आप इसको ये एलियनेट करो या चलो मैं आई डोंट वांट टू स्पेशली द पर्सन इज नॉट हियर बट मैं ये जो कह रहा हूँ ये जो रहत मर्यादा ये बिल्कुल गलत है। और कोई पंजाबी आप ये पूछ लो कि उसको पता भी है कि ये है। जो मैं खत्री परिवार से आता हूँ, मतलब ये जो है ये सबसे इलस्ट्रियस है कि हम भी किसी को परेशान नहीं करते तो किसी को पता नहीं। बट द मोस्ट इलस्ट्रियस कम्युनिटी इन ऑल ऑफ इंडिया, आई एम नॉट सेइंग इन पंजाब, इज द पंजाबी खत्रीज। वी आर द मोस्ट एजुकेटेड कम्युनिटी। जो इस कंट्री के बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन है वो पंजाबी खत्री ने बनाए हुए हैं। फ्रॉम द स्पेस टू यू से व्हाट इट इज कि ठीक है। और मैं आपको बता कि इतनी मेरे मेरे इतने पढ़े लिखे परिवार में ये कुछ नहीं पता कि ये क्या क्या रहत मर्यादा है। तो आम सिख को क्या ही पता भाई। तो उसके सिर ना मड़ो ही। तो ये कोई ये अब मैं अब इनके तो ये तो आपको पता लग गया ना। ये तो मैंने आपको बता दी। मेरे को तो 20 चीजें और पता है जो आपको नहीं पता, जो इन्होंने हरकतें की हुई हैं। अब जैसे ये जो मैंने आपको चौपाई साहब का बताया है, ये कोई मजाक है क्या? 29 तक चल रहा है, 25 से एकदम पे जगमाता। तो यही है, एसजीपीसी को एक्सपोज करो और जो इन्होंने सिखों के साथ गलत किया वो इसको एक्सपोज करो। ये क्या मतलब है भाई? ये कोई नाच गाना मत करो कि वो उनको तुम ये तवाइफ कह रहे हो, क्या बकवास लगा रही है भाई? कोई पंजाबी हो सकता है जो नाच गाना ना करे? अच्छा मैं भिंडीवाला जी लास्ट चीज आपको बताता हूँ। जब ये टेररिज्म चलता था ना पंजाब में, तब भी ये खालिस्तानियों ने ये फतवे लगाए थे। तब इन्होंने अपनी मर्यादा फॉलो करवानी शुरू कर दी थी। तो जो अपना ये गिल था। मुझे मुझे ये हाँ एक जी, तरीके से मुस्लिम कल्चर लगता है, जैसे मुस्लिम में फर्स्ट वे निकाल देते हाँ जी। और बिल्कुल, वो बिल्कुल। और मैं अच्छा मैं सेम हाँ जी। ट्रैक फॉलो कर रहे हैं। हाँ जी, 100%। और मैं को क्योंकि बाकी तो सारी पुलिस बैठ जाती थी, चौकों में लगाती थी, हाँ जी गाड़ियाँ चेक करो। वो कहता नहीं, मैं जाऊँगा माझे के अंदर जहाँ पे सबसे ज़्यादा बदमाशी चलती है और मैं खुद चलूँगा। और सारी की सारी वो 300 गाड़ियाँ लेके आ जाता था। तो पी, 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 पी सारे आ जाते थे कि भंजी कोई हो गया। वो कहता अब यहाँ पे हम पंजाबी हैं, यहाँ पे चलाओ पार्टी, यहाँ पे गाना चलाओ और यहाँ पे बकरा बुलाओ। और मैं यहाँ पे बैठ के पैग लगा के बकरा लेके जाऊँगा। तो वहाँ पे सारे पंजाबियों को लगा कि हाँ भाई यहाँ पे एक तो खुद अपनी जान में जोखिम में डाल के तरन-तारन में आए हुए हैं कि ये सच्ची-मुच्ची कोई लड़ेंगे, तो चलो इनके साथ खड़े हो जाएँ। आज तो पंजाबी कौन सिख भैया बोले जब तुमने पुलिस कूट दी अजनाले के अंदर, तो कोई पागल है? मेंटल है जो जाके बोलते? कोई बोल ही नहीं सकता। बट गिल ने ऐसे लोगों को कॉन्फिडेंस दिया कि मैं इनकी सबसे ज़्यादा बदमाशी चलती है माझे के अंदर, मैं चलता हूँ माझे के अंदर, इनके गढ़ के अंदर। और जो ये कहते हैं कि हम तुम्हारा वो सारा ये बैन-बून कराएँगे, यहाँ पे लगाओ म्यूज़िक और यहाँ पे बनाओ बकरा। और तो मैं ये बता रहा हूँ ना, ये सारे और सारे के वो बदमाश हुए। ये आवाज़ आ रही है ना?
हाँ हाँ जी। जी। Yeah, I can जब मैं आपको बताता हूँ, जब टेररिज्म खत्म हुआ ना, तो सबसे पहले ये गिल ने ऐसे ही किया था, क्योंकि सारा कुछ बंद हो जाता था जी, अंधेरे से पहले 3 फिर कुलदीप मानक का एक कॉन्फ्रेंस कराया, जिसमें लाखों पंजाबी आए, ओपन एयर कॉन्फ्रेंस की, चलो जी चलो, कि वो हो गया। फिर इसने दोबारा कराया एक गुरदास मान का, जिसके अंदर फिर पंजाबियों को लगा कि हाँ भाई, कि रौनक वापस आई है, कि हम पंजाबी हैं, कि हम गाना सुन सकते हैं, हम डांस कर सकते हैं। इन बदमाशों ने तो सारा बंद करा दिया हमारा। तो ये कौन है यार? मतलब ये अब जैसे कोई मर्यादा निकाल दी। आप भी तो पंजाबी, आप कुछ जानते हो कि कोई सिख की शादी में कि कोई औरत ना नाची हो? जी, ये था। नहीं, इसमें बुराई क्या है? ओ अगर भाई, कोई कोई चलियाता है, मतलब कोई लड़की बुराई फ्रीडम तो यार, अपना मैं चाह रही तो है। आई डोंट नो इफ यू कैन ट्रांसलेट, जैसे हमारा एक वर्ड होता है पंजाबी में चलियात, तो चलियात मारी जाते हैं यार, उसको कोई सीरियसली भी नहीं लेता। मतलब कोई ये हो ना कि ये चलियाता है बेसिकली, जो मेरी आप अच्छे बुरे की बात ही नहीं है, मतलब हँसा ही आता है यार, और मतलब थोड़ा-सा रोना भी आ जाता है चलियात हुए। हाँ जी। Yeah, thank you, Punish. Oh, Abaji, I think left. She wanted to speak something. Maybe she'll come back. Let's go to, yeah, Satya was next. Then I'll go to Third Eye, and yeah, Sadish. Sandeep Thank bhaiya, you. I think there are at least a couple more requests, and I'm not able to approve them. So if you could take Yeah, them. just a quick announcement. Thank you. I think certain people are having problems today to come on stage. We are trying to add you constantly. Uh, Try a couple of things. One, restart the phone. If that doesn't work, uninstall Twitter, reinstall. That has worked for a couple of people. This is a common problem. I don't know. I think it's mainly with Android. I'm not sure. Abaji, constantly trying to add. I mean, not Abaji. DPRG, I'm constantly trying to add you, but unsuccessful. Please uninstall Twitter, reinstall. That will work. Babuji, same thing. Yeah. So And I sorry. I think mean, there's a glitch, so we can't do much about it. So I don't know if I'm reading this right, the Gurmukhi. राज करेगा खालसा, सर आपको भी हम ऐड नहीं कर पा रहे. So there's probably an issue on your end. can I talk? Leave करके वापस आ जाएं, or uninstall and then reinstall Twitter app. Hopefully that'll work. Yeah. Satya, go ahead. Thank you. Puneet ji, welcome back. मैंने आपको एक वो मैकालिफ और जो यहाँ लिमरिक आयरलैंड में जो उसका प्लाक बनाया गया 2019 में, उसके बारे में भी लिख के भेजा था, थोड़ा और डिटेल भी भेजी थी, बट एंड यू कैन रीड इट एंड गेट बैक टू मी. बट जो अभी आज का जो मैं सवाल आपसे पूछना चाहता था वो अंगीठा साहब के बारे में था. इज देयर सम कंट्रोवर्सी अराउंड इट? क्या वहाँ पे कुछ SGPC इज डूइंग समथिंग दैट इज नॉट लाइक कोशर? कुछ ना कुछ वहाँ पे गड़बड़ चल रहा है, destroying some religious scriptures and old religious books. क्या ऐसा कुछ चल रहा है वहाँ पे अंगीठा साहब में? इसके बारे में थोड़ा बताइए. मुझे कुछ नहीं पता जी, और ये अंगीठा साहब तो एक जनरल नेम है, कि जहाँ पे किसी का अंगीठा का ये मतलब होता है कि जैसे वो शमशान होती है ना, कि किसी को जलाया, तो जैसे ये जो बाला साहब गुरुद्वारा है, वहाँ पे गुरु की जो महल है, जो वाइफ्स है, उनका अंगीठा है, मतलब वहाँ पे उनकी चिता जलाई गई थी. अब आप कौन से अंगीठा साहब की बात कर रहे हो, क्या करो, आई हैव नो आइडिया, मुझे वो नहीं सर, पता ही वही नहीं. है, वही वो एक और है, देहरादून के या उत्तराखंड में है एक अंगीठा साहब, जहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स जो रिलीजियस स्क्रिप्चर हैं, इनको ऐसे वैसे फेंकने के बजाय दे एक्चुअली बर्न देम. और वहाँ पे कुछ इट्स टॉप सीक्रेट अफेयर टू बी ऑनेस्ट. वहाँ पे क्या चल रहा है, देयर डेफिनेटली इज समथिंग गोइंग ऑन, आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट उसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं चल पाता है, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे पूछूंगी, कुछ आपको नहीं, शायद मेरे को, जानकारी. मैं वैसे भी सत्य जी, आप मेरे थोड़ी दूर से आए हैं, एक तो मैं आपका जो मैसेज था, आई एम सॉरी, मैं 12 दिन से बैन था, और वैसे ही आई हैव टू कैच अप ऑन ऑल माय मैसेजेस. आई प्रॉमिस आई लुक इनटू योर मैसेज. और मुझे करंट अफेयर्स के बारे में सही में ज्यादा पता नहीं होता. ये यहाँ पे ये नीचे वो भी था, मैं अभी देख रहा था, वो अपना जो बंदा है, वो क्या नाम है, वो बहुत सिंसियर, आशीष ठाकुर, यू नो, लाइक, एंड यू नो, ही इज आल्सो पंजाबी, एंड यू शुड, ये फन फैक्ट भी है, दे नो मच मोर, एंड यू नो, दे आर यंग, एंड कि पंजाब में क्या हो रहा है. एक वो कोरस भी है, लाइक आई एम मोर, यार मैं सही बता रहा हूँ, कि मतलब जैसे मैं इनको फॉलो करता रहता हूँ, कि जो मेन खालिस्तानी अकाउंट है, और ये कभी जैसे बकवास कर देते हैं जी, ऐसा तो था नहीं, तो मैं हिस्ट्री का, बट आई एम मच मोर लाइक हिस्ट्री पर्सन.
तो तो वो आप आप मुझसे पूछिए, आई एम नॉट सो मच अ करंट अफेयर्स का। और आपकी जो बुक है उसकी प्रोग्रेस क्या है और उसके आपको पब्लिशर मिला और कब तक हम लोग उसको खरीद सकते हैं? हाँ वो यार अभी मैं इसको आंसर कर दिया, देखो वो द शॉर्ट आंसर इज होपफुली बाय द मिडल ऑफ दिस ईयर। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। और यार फिर ज्यादा बोलता हूँ, इट स्ट्रेसेस मी आउट, सो Yeah, thank you. Kulji, can you check your messages? Who was Yeah. next? Yeah, I think third I was next. Third, go ahead. Hello again, Puneet ji. So I think a little while ago you were being very modest and saying ki I have just been doing this for 2 years, ahead of most people on this space right now. So I just want your opinion on it's becoming evidently clear that what SGPC Amritsar is doing, and like how they are sort of doctoring with the religious documents and stuff. So my first question is, third, I'm sorry, I'll try to do it again. My wife just like called me repeatedly. I have to go meet her for वो dinner. तो मैं तो अब जा रहा हूँ यहाँ से। तो we'll do, I apologize, we will do in the next days, but समझा करो भाई कि मेरे को भी जवाब जो देना पड़ता है खालिस, बट हर इंसान के मतलब ठीक है। तो I have to leave. Very 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 good, catching up, and we'll catch up again, and keep up, everybody good work. And I really think कि lot is happening bad, but there is lot that is going in our favor as well. And again what I said, like the problem with Punjab is only SGPC, और एक वही है ये जो इन्होंने किया हुआ है। आई थिंक पंजाब से एक दो उसको बेसिकली एडिक्शन, मतलब एक तो SGPC है, दूसरा चोना जो पैडी कल्टीवेशन है। अदरवाइज वी पंजाबीज आर वेरी इंडस्ट्रियस पीपल, वेरी टैलेंटेड पीपल, वेरी वार्म पीपल, वेरी टॉलरेंट पीपल। मैं ये जो हमारी रेपुटेशन बनी हुई है ना कि ऐसे कि हम जी ये कर देते हैं, वी आर वेरी वार्म पीपल। मैं आपको एंड नॉट कि जैसे आप कभी ये चलो लंबी डिस्कशन हो जाएगी, आप कोई साउथ इंडिया से हैं, आपको पूछें कि जैसे औरतों की भी बात हो रही है ना, दे विल टेल यू कि जो वुमेन एक्चुअली है, वी आर वेरी एम्पावर्ड और आउटस्पोकन, और ये भी नहीं है, अब सब कुछ हमारा ठीक है। बट ये हर जगह वो पता नहीं, पता टावर तोड़ दो, वो पता नहीं सड़कें, और ये सारी की सारी एक ये चोने की एडिक्शन है जिसने सारी पॉलिटिक्स तबाह कर दी है, और एक ये बेसिकली SGPC है। और SGPC हैज नेवर बीन सो वीकेंड इन इट्स 100-year हिस्ट्री एज इट हैज बीन नाउ। तो ये मैं देख रहा हूँ कि मतलब देयर आर लॉट टू बी स्केप्टिकली पॉजिटिव अबाउट, एंड आई रियली बिलीव दैट वी कैन सी अ रेनेसेंस ऑफ पंजाब इन माय ओन लाइफ टाइम। बट एनीवेज विल टॉक अनदर टाइम। Everybody take good care, and bye bye. Thank you, Puneet Yeah, thank you, Bhaiya. Puneet. So lovely to have you back. Yeah, go ahead. Yeah, thank you so much. I'm happy that he's gone because my question was not. I'm happy as in, and with all due respect for him, I'm just a bit more relaxed. Acha, so I was listening to each one of you, and it's a good that you people are concerned about Punjab, but this room seems like for Puneet. Well, it's good that you're talking about the situation of people, blaming. I think the blame game was going on that okay, it's the HCPC and not the innocent Sikhs. Oh, we'll see if that's the case. कोई बात नहीं. But मुझे ऐसा लगता है कि the population of these innocent Sikhs are very less जो वाकई सनातनी सिख अपने आप को claim करते हैं. अब क्योंकि इनकी population इतनी कम है, तो इनकी इतनी ना तो face value है और ना ही इनकी जो vocal है valuable है on ground पंजाब. ठीक है, अगर वाकई सनातनी सिख जैसी कोई कोई चीज होती है, तो क्या कौन सा सिख इतना कंफर्टेबली अपने बाल केश कटवा के सनातन को अपनाएगा? शिवाइट्स अभी वो उन्होंने किया था। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। फेसबुक पे जाओगे तो आपको कितनी ऐसी चीजें मिल जाएंगी जिसमें अगर कोई हिंदू एक व्यक्ति एक एक नारी स्त्री, औरत मैं यूज नहीं करता हूँ क्योंकि औरत एक बगैर अरबी शब्द है जो कि गलत है। जब एक स्त्री हिंदू अ, सिखिज़्म को अपनाती है, बहुत लोग खुश होते हैं। कोई एक व्यक्ति भी अमन कुमार से अमन सिंह बनता है। पर क्या वो खुशी जब एक सिख अपने केश कटवाता है और वो एक ब्राह्मण जैसी चुटिया रखता है या वो कुछ भी इस तरह की वो चीज़ करता है, तो क्या आप लोग सब एप्रिशिएट करोगे?
अगर करोगे तो वाकई सनातन सिख जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, और अगर आप लोग नहीं करोगे तो सनातन सिख जैसी कोई चीज नहीं है आज के समय पे। मुझे ऐसा लगता है कि इस बात में कोई कोई शक, कोई डर और कोई इस तरह की चीज होनी नहीं चाहिए कि अरे अरे ये तो बीच में दरार पड़वाने आ गए। मेरा सिर्फ छोटा सा इतना पॉइंट है कि सिख किलिंग हुई थी दिल्ली में, उसको तो बहुत बड़े लेवल पे, जिसको हम एंटरटेनमेंट लेवल कहते हैं, मूवीज और वेब सीरीज और सॉन्ग्स और आप जैसे लोगों ने कितना सपोर्ट किया और कितनी मूवीज आई, लोग अवेयर हो गए। पर आप लोग न जाने कब पंजाब पंजाब हिंदूज में जो किलिंग हुई थी उसके बारे में कुछ बोला। हाँ मुझे पता है मेरी आवाज दबा हो गया, पर इट्स जस्ट माई थिंग राइट। मेरे पास तो आप डेटा जो भी है, क्वेश्चन पर पूछा उस उसका आंसर दे रही हूँ। हाँ I don't have a need to actually suppress anybody's voice. So हम्म all the people who are requesting, first of all, for mics, we are unable to accept your request because there's technical bugs or glitches happening on your end on your Twitter app. Either leave the room. You can try to leave the room and join again. Deepya Didi, Bikram Singh, Yash, and Samba Hume, Samba. All of these people, or perhaps you'd have to uninstall and reinstall the app, and hopefully that will work. You raised a very good question, and I actually have a question right in my own family. My grandfather, of all his siblings, was a Keshdhari Sikh. He was the Khalsa. But then later on in his life, he actually became a Munna. And I have other नो ancestors. I have नो other नो 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 ancestors मैम, who were दैट both. क्योंकि Who वो were बालों both. से परेशान है, कोई रिलीजियस एंगल था, कोई रिलीजियस एंगल था, वाज ही सो मच इनटू सनातन, क्योंकि वो बालों से परेशान होंगे जो एक रेगुलर सिख होता है जिसको नहीं वो इतनी नहीं, it रिस्ट्रिक्शंस नहीं wasn't even रहती। him. It wasn't. ऐसे Can I बालों से just say कैसे that? परेशान? जब जब कोई ऐसे मन्नत मांग के और गुरु साहिब जी के पंथ में, वो गुरु गोविंद सिंह जी के पंथ में, खालसे में जाता है, तो ऐसे वो दे आर नॉट पीपल हु आर फेंट ऑफ हार्ट्स, कि उनको केश से दिक्कत हो गई। मेरे खुद के थे और अब नहीं है, बिकॉज आई एक्चुअली हैव अ मेडिकल इश्यू। नहीं Can आपने you मेरा please? पॉइंट नहीं समझा, किसी ने मेरा नहीं पॉइंट नहीं समझा यहाँ पे, बट नहीं इट्स नहीं, ओके, सुदाशिव जी, इट्स फाइन। सुदाशिव समझ जी, गई मैं कि क्या सेलिब्रेट करते हैं, कोई अगर खालसा से वापस सनातन में घर वापसी करता है, या वो मुन्ना बनता है, या जो भी है। क्या हाँ, मोना कोई नहीं, दिक्कत मोना नहीं, नहीं है। हाँ हाँ, नहीं वो आपको नहीं होगी क्योंकि शायद मे बी आप कहीं ना कहीं पंजाब से बाहर है, बट मैं एक बड़े लेवल की बात कर रहा हूँ, है ना। क्योंकि जब जब आप लोग सिखों की बात करते हो कि इनकी किलिंग हुई, और जब हम पंजाबी हिंदू जाके कहते हैं कि भाई हमारी भी किलिंग हुई, तो कोई हाँ जी, एंटरटेन हुई। करने के लिए तो मैं आता है। आपको जवाब दे रही हूँ, ये सब जो है, इट्स ऑल वेरी पॉलिटिकली मोटिवेटेड। जहां माइलेज हम्म मिलेगी वही होगा। और 1984 की जो बात होती है, और जो वेब सीरीज बन रही है, और जो मूवीज बन रही है, दैट वाज एक्चुअली तो फिर एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट। कश्मीर सुनिए तो किलिंग सही, भी हिंदुओं सुनिए की तो। पॉलिटिकल थी, मुस्लिम्स Can I बहुत say अच्छे थे, something? सदाशिव, कैन यू मुस्लिम्स एटलीस्ट इतने लिसन? अच्छे थे, मुस्लिम्स Can I बहुत say अच्छे थे। something? मिनी Uh, जी, एक सेकंड आप। जो कश्मीर में हिंदू मरे थे वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट थी, कोई रिलीजियस मूवमेंट भी थी। हमारे मुस्लिम भाई उनको गले मैंने लगाएंगे क्या हम बोला? कश्मीर के। मैंने क्या बोला? कि बोलो it बोलो। was for political mileage? Did I not say that? And 1984, after Operation Blue Star, and then, like, the killings that happened in Delhi and elsewhere of Sikh who were identified and killed, that was political vendetta. That's what I'm हमारी trying to किलिंग say. 84 से पहले, And it हमारी was, किलिंग yeah, 84 से भी it पहले। was an inflection point, but you'll actually have to go deeper in order to do justice to all the Hindus that were killed in Punjab and elsewhere during the militancy in Punjab. And I agree with you on that कि उस पर तो कोई बात ही नहीं करता। तो हमें अब, क्योंकि कोई उस पर बात नहीं कर रहा, तो क्या हमारी चाहे लोन वॉइसेस हैं, या हमारा इतना कोई क्लाउट नहीं है, तो क्या हम बात भी ना करें? just because just because we are numbered, let's say even a handful or 5 people who know a little bit more than others, who are creating all this ruckus outside India, and, like, putting a bad name to our gurus and their ultimate sacrifices. So does that mean because I am perhaps a lone fighter, or No, maybe there's only two you need two to of me, fix your so, like, stats outside.
Should I just sit Outside idly by? ma'am, outside India की बात हुई नहीं. You come to Punjab, I'll show you what's happening in my city. Sikh people are attacking the Hindu temples. तो क्या वो कनाडा के हैं? Oh नहीं, मैं नहीं हमारे कह रही. घर नहीं. हाँ, तो You that's what preaching don't to the say. Then choir, don't blame Sadashiv. to Canada. Don't blame to Sadashiv, Canada. you're 1 minute. Can preaching I to say the something? choir. Yeah, okay. Yeah, just Can, one second. can I Mini say Yeah, something? Miniji, go ahead. Mini Yeah. ji, Okay, Sada Sadaship ji, Sadashiva. Sadashiva ji, I totally understand. और मैं भी ये क्वेश्चन रेज करती हूँ कि मैं मेक श्योर करती हूँ जब खालिस्तान की बात चलती है कि 1984 में सिखों का जेनोसाइड हुआ, तो मैं इस बात को हमेशा एम्फसाइज करती हूँ कि देखो ये बात शुरू हुई थी हिंदुओं की किलिंग के साथ और उस चीज को भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन हम लोग रिजेंटमेंट के साथ ना बात करें, हम अपना पॉइंट लेके आए और कहें जब भी कोई ये बात उठाता है तो ले आए हम लोग, हमें कौन मना कर सकता है, हम उस बात को खड़ा करते हैं, लेके आते हैं, लेकिन हम रिजेंटमेंट किसके साथ कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं? बहुत सारे सिख जो हैं वो खुद उनसे इतना डरते हैं कि वो उनकी जुबान उनके सामने नहीं खुलती, सो जो शोर मचाता है जिसे मतलब भाषा मैं अपनी यूज करूं, जो गुंडा होता है वो सबसे ज्यादा शोर मचाता है और हमको उसी की आवाज सुनाई देती है कि वो बोले जा रहा है, उसकी आवाज सुन रही है और हमको लगता है कि वही बस एक ही नैरेटिव है। नहीं, जब वो बोलते हैं तो हम लोग भी बोलते हैं और हमें मुझे कभी खालिस्तानियों के साथ कभी बात करते हुए देखना, वो उनके बात शुरू करने मैं कभी भी उनके साथ डिफेंसिव होके बात नहीं करती। आई ऑलवेज टॉक इन ऑफेंसिव मैनर बिकॉज़ जो जैसा होता है उसके साथ वैसा बात करो। लेकिन जो यहाँ पे हमारे साथ लड़ नहीं रहा, वो भी उसी कैटेगरी में है, वो भी उतने ही विक्टिम है, जितने हम लोग विक्टिम हैं। सो Acha, my last question, यस। this is, and thank you so much, Maniji, that at least you understood. But again, we all are polar opposite to each other. जब मैं बोल रहा हूँ कि हमारी किलिंग सिखों ने करी, आप लेबल दे रहे हो खालिस्तानी. दैट इज माय प्रॉब्लम. सेकंड, जब मैं कह रहा हूँ कि यस मेजोरिटी ऑफ सिख्स इन पंजाब आर दी प्रॉब्लम, तो जो जो थोड़े बहुते अच्छे सिख हैं, आप उनके लिए इतना प्रोटेक्टिव क्यों हो जाते हो? हम तो नहीं कह रहे कि वो खराब है. मैं जैसे एक एग्जांपल है कि मेरे पैर में दर्द है, आप और मैं एक सर्जन के पास जा रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि मिनी जी जिस डॉक्टर के पास आपने मुझे रिकमेंड किया, सॉरी मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो Yeah, सर्जन है, आप बोलो नहीं नहीं वो Sadesh, डॉक्टर की हिस्ट्री बहुत अच्छी है. मैं Sadashi, पैर की बात मेरे कर रहा पास हूँ इसका आपसे. आंसर है, बहुत अच्छा आंसर है, जस्ट गिव बस मी। yeah, आंसर तो आप लोगों के पास बहुत होंगे मैम, आंसर तो बहुत होंगे. yeah, देखिए okay. बट देखिए मैं मुस्लिम वेरी क्विकली आई वांट टू से, आई नो व्हाट यू वांट टू से। मैं आपको एक बात बताऊं कि जब इतने हालात सेंसिटिव हुए हैं और हम सबको पता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस एक बार भुगत चुके हैं, तो एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम और डिवाइड पैदा ना करें। मैंने अपने क्लब हाउस पे बहुत लोगों को सुना है ये कहते हुए कि हमारा हिंदू चीफ मिनिस्टर कब बनेगा, ये करेगा वो अरे हर चीज को करने का एक वक्त आएगा। जब इतने हालात खराब है, कोई जोड़ने वाली बात करनी चाहिए, ना कि तोड़ने वाली बात करनी चाहिए। आप कहते हो कि बहुत सारी सिख जो है हमारे अगेंस्ट हैं, कश्मीरी लेकिन मुसलमानों को गले से लगाओगे आप? कश्मीर Yeah, Sadashi, I'll have to move you down. You're saying the same thing again and again. You're not adding any value. Looks like you're here to instigate all of us to see Sikh as a community as a monolith and summarily attack them, which we're not going to do. We do. I mean, we're not shying away from showing the mirror to the community. The number of killings that have happened, all those things, we'll definitely talk. But we are not going to sit here and listen to you, to make a case for us to target the entire Sikh community. So, yeah, I just do not do this to anyone. But again, you are going on and on for the last 10 minutes. Let's move on. Thank you, Sandeep ji. Yeah, who was next? I think Third Eye. Yeah, Third Eye. Yeah. Yeah, thanks for having me, Sandeep ji. And what Sadashiv said now, I had actually met him on Twitter Space a few days ago. So I think we need to be clear what our end goal is. And I'm speaking to Sadashiv. Yeah, Sadashiv, let's say हमने prove कर दिया that the Sikh community, the majority is bad. Like, what's the point of that?
in our experience, in our life, let's look back. I mean, all of us have had sick people around us. We have sick friends, we have sick neighbors. How many people have ever discriminated against us? I mean, they are really well integrated into the society. So, sort of considering this entire community like a monolith, I think there is a problem. And when I started my research on these matters, right, it was evident to me that SGPC Amritsar, they are basically twisting the Guru Bani to fit a narrative. And my first question was, then why isn't a big resistance coming from the Sikh community themselves? So ये वाला question मेरा भी था कि until and unless majority of the Sikh people subscribe to the same ideology, why do I not see very sharp condemnation or very strong resistance against what SGPC Amritsar is doing? I think the answer to that is nobody wants to take panga with these people, man. I mean, like for example, as a Sanatani within our community, there might be some extremist. We are not willing to engage with them, man. We're like, let's not give them any importance. Just let them be. They are doing something stupid. You know. So I think that is the kind of phase where the Sikh community is in the present. And the second thing that you mentioned, right, like when a Sanatani converts to Sikhism, then there is this big celebration of their name being changed and their habits being changed and all of that. So why is it not in the reverse? Just try this within our sects of Sanatan Dharma. Go to a Shaivite and ask them to convert to believing in the Krishna movement and see what happens. Try to get a person Samaj and try to get them into the Bhakti movement. I mean, we don't have to convert into from one sect to another to prove that we are Sanatani. Out there who celebrates being sick and they are comfortable with their Sanatani. So what's the problem? Like, why do they need to cut their case and change their name and do all of this? So I think let's just keep a broad perspective. End goal is to we have shared the land for a very long time. We derive from a common source when it comes to our religious values. So the goal is to unite and not to basically point fingers and try to sort of just whitewash an entire community as a monolith. Yeah, thank you, Third Eye. I mean, like Third Eye said, Sikhs are not a monolith. There are some Sikhs who are, Khalistanis. There are some other Sikhs who consider Brindanwala as a saint, but they don't want Khalistan. They want to, stay with India. They are also very patriotic. There are other people who, consider Brindanwale as a terrorist, and all kinds of Sikhs. Right? So let's not see them as a monolith. I do take your point. We should be talking about all the atrocities that have happened in the Hindu community. That again, we should not shy away from speaking about history, facts, and also that kind of if you don't talk about what happened to Hindus, that kind of gives these Khalistanis a free hand to run with their victim card. So they just need to understand the other side of the story as well. I would like to a lot of Khalistanis do not yet realize that is the nursery of Khalsa. Like Guru jo the, hamare majority of hamare Sikh gurus, they came from Khatri families. Also, hold on, Karamveer, hold on. और यदि सनातन इस देश की आत्मा है या खून है, तो उसका जो गाढ़ा लाल रंग है ना, वो सिक्खी है, सिक्खी का है वो. That's all. Yeah, just 1 second. Dipiya ji is here. Dipiya ji, I tried to add you so many times. I even sent you a co-host request. Looks like there's a problem on your end. Do one thing. Uninstall Twitter, reinstall. That should fix the problem. I don't know. Short of that, I don't know how to bring you up. There seems to be a problem on your end. It's happening to a lot of people today. I don't know if it's an Android thing or I'm not sure. So just please try that. Yeah, Karam, you wanted to say something? No. ये कोयल जो कह रही है ना, ये दुख की रंग पर हाथ डाल दिया इसने. कहता है ये सनातनी Genesis, Sikhism का जो Genesis है, that is all Sanatani. This is precisely what people like Kabila would not like.
Kabila is Let here, them not and like it. I'm very Karamveer, it does not yes, change facts. Truth, yeah. you cannot argue with that. Yeah, that's exactly what these people are fighting for. Two things. Let They them. want to be recognized as a separate, distinct faith. One. Second, they also don't want to be linked in any manner with Hindu faith. It's so strange. They're hardcore rigid people. I think Kabila ji, you are here. You Yeah, they yesterday might I want to. tried hard. They might also want to grow wings and fly to moon, but Karamveer, that doesn't yeah, mean that it's going to happen. I'll go with my We need turn. to Don't we worry. need to stick to the facts. Not Ji. we have two Kabilas here. I don't know. There's Azad. मैंने कबीला जो ऊपर सेकंड लाइन पर है ये Yeah, it's असली on it. कबीला I don't know. संदीप जी पोस्ट पढ़ा मुझे पता लगी थी उनको. Kabila, you are so funny. Such a character you are. बहन क्या हो गया मैं कोस्ट नहीं मारता. नहीं, मैं कुछ नहीं कह रही. मैं कुछ नहीं कह रही. तो Just बहन entertain. मुझे भी कोस्ट कभी-कभी बना दिया करो मैं तो आपको. Yeah, okay. बना दो इसको कोर्स यार संदीप. नहीं Karanveer, hold on. Yeah, I think Sandeep ji Satya was next. Satya ji. Kabila, I'll make you a promise. If you behave in this space, I'll make you co-host next time. Okay, deal? Satya, go ahead. So to be honest, the level of space has immediately gone down 10 notches with you adding Toba and Kabila on the space. They're going to start with their Brahman bashing, and they can't even say Brahman. They say Brahman. Satya, don't worry about that. Leave that to me. I will manage the space. Make your point, my friend. Okay, Let's not try to trigger others. Let's not try to get personal. We are having a civil discussion so far. But if anybody steps out of the line, I'll move them down immediately. So don't worry about it. Go ahead. That's going to happen very quickly, my friend. So Sandeep, my point was that, look, there is a distinct identity. There is no question of that, right? They have gurudwaras, not temples. Clearly, there is distinction, right? I think there is no question of Hinduism saying, oh, we want you back and we want you back in our temples and we want you to follow Mahabharata and Gita and read Ramayana. Nobody's saying that. There is no appetite for that, right? All we are kind of looking for is, don't use this issue as a victimhood, because this is the victimhood narrative, right? That the Nazis played in Germany and they killed millions of Jews because Nazis thought that they were persecuted by Jews. So they had to take revenge. I think these guys are exactly playing the same from the same playbook. We are the victims. Oh, things are happening to us. You have the 80% of land in Punjab is owned by you, right? Hindus are probably second, third class citizens there. There are even like Majhabi Sikhs who are Dalits basically, who should be getting reservation in Punjab, who should be treated like they are treated in the rest of India. They are not. You have basically thrown out Sahajdari Sikhs out of SGPC. I don't know why. You have displayed a terrorist photo in all your gurudwaras who's responsible for killing thousands of Hindus, and one of them was just speaking before that. And you are allowed to do that, and you're doing that with impunity. No other country will tolerate that kind of shit. So this is a Nazi party which is playing victimhood and going towards the same genocide SOP, standard operating procedure. I am the victim. Things are happening to me, so I have to take revenge. I have to protect myself. Oh, look how they are coming. Satya, land your point. You're repeating yourself, my friend. So that's okay. So what I'm trying to say is, this victimhood will continue. So somebody saying, oh, because we are not being allowed to be distinct, you are distinct. You've got your own religious body. You've got your religious works. You've got your religious places of worship. You are worshipping the way you want. Nobody is interfering with that. I don't know where this victimhood is coming from. I think the Hindus in India are more persecuted than these guys. We have less land. We've got a lot less favor from the government. The gurudwaras are not controlled by the government. Gurudwaras, the funds that come into gurudwaras don't go to government, unlike Hindu temples. So if anything, I have more to worry about than these guys.
but they will play the victim. This is the Nazi playbook that they'll keep playing at. You cannot convince them. Any attempt to reason with them is going to fail. Trust me. There is nothing that they will listen to. They're not going to listen to the voice of reason. That's all I want to say. Yeah, thank you. Yeah, before thank you for stating that. Before I go to Kabila, I'll have to agree with what you said. This whole Khalistani project is a racist, supremacist project. Just look at these handles and look at how they use pejoratives for Brahmins. Brahmana, they don't even say Brahmin properly. And also look at the way they call Biharis. They call them Bayas and all those things. Just even if a Sikh is in support of Hindus, they brand him as a Baya and a traitor and all those things. This is nothing but a supremacist project, like Satya said. The Hindus are the victims in Punjab. Hindus are the minority in Punjab. Punjab is also the homeland for Hindus. So if anybody wants Khalistan, let's make a deal. We already have a Khalistan in the hands of Muslims, and yeah, you go and take your share from there. Of Punjab, we have Punjabi Hindus, and we have Sikhs, patriotic Sikhs who want to stay with Hindus. So there are a lot of intermarriages within Hindus and Sikhs, and like Mazhabi Sikhs and all those things, which SGPC does not consider Sikhs at all. So they will stay with Indian Punjab. But again, if you really want make a Khalistan, I think you have to go and plead to the Pakistani government. Yeah, I'll come to everyone. Kabila, go ahead, my friend. I hope we can have a civil discussion today. Yeah, go ahead. Don't use Burman tropes. Don't abuse Jews and all those things. No caste slurs, only intellectual stuff. मुझे वर्ड लिख के दे दीजिए, जो भी आप कहेंगे मैं नहीं यूज करूंगा। पहले तो सभी भाइयों को वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, राम राम सब भाइयों ने। अब सवाल ये नमस्कार, अहलन व सहलन। नमस्कार जी। सबसे पहली बात, हमें इम्पोर्टेंट बात पे कंसंट्रेशन करनी होगी कि पुनीत साहनी जी का जो अकाउंट वापस आया है और आप लोगों ने मेहनत की है, उसकी मैं आपको दाद भी दूंगा और बधाई भी दूंगा। आप बधाई के पात्र हैं कि आपने मेहनत की और पुनीत साहनी जी को वापस लेके आए। मैं भी सोचूं कि इतना झूठ और फैला कौन सकेगा। मैं अपना पॉइंट ही कह रहा हूँ, माफ कीजिएगा। पर संदीप जी, सिख कब से मांग कर रहे हैं कि जो भी लोग उस दरमियान मारे गए, चाहे वो मुस्लिम थे, चाहे क्रिश्चियन थे, चाहे सिख थे, चाहे हिंदू थे, उसकी एक इंडिपेंडेंट बॉडी से इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए। 1980 से लेके बाद तक अगर कोई भी बंदा मारा है सिखों ने, तो सिखों ने खुलकर उसकी एक मिनट संदीप, आई अपोलोजाइज। मैं एक बात कहना चाहती हूँ और आई विल बी क्वाइट आफ्टर दैट। इस स्पेस में ये चीज बिल्कुल ध्यान से याद रखो एवरीबडी, कि सिख जो है वो खालिस्तानी नहीं है। खालिस्तानी इज अ टोटली डिफरेंट ब्रीड which is connected to the Pakistanis. So Sikhs are not Khalistani. Khalistani is a totally different breed. Okay, now you can talk. थैंक यू वेरी मच। आपकी स्पेस है, आप नहीं भी बोलना देना चाहते तो मुझे नीचे फेंक सकते हैं, कोई मसला नहीं इसमें होने लगा। पर मैं ये कहता हूं कि कभी सिखों ने इस बात से इनकार किया है कि यूनाइटेड नेशंस की बॉडी को बुलाओ ताकि वो इन्वेस्टिगेट करके बता सके कि आखिर हिंदुओं को मरवा कौन रहा था। एग्जाम्पल देने जा रहा हूं, अशोक कुमार जी का पूरा परिवार मार दिया जाता है। ये होशियारपुर, जब आप जलंधर से पठानकोट की तरफ जाते हैं, बहुत बड़े फाइनेंसर थे, ये सुमेध सैनी ने मारा है, और जो कि डीजीपी रह चुका है, उसका कोर्ट केस उसकी बूढ़ी माँ अशोक कुमार की 100 मेरे ख्याल से 7 के 8 साल की होके मरी है। प्लीज जाके सुप्रीम कोर्ट में मैं केस नंबर देता हूं आपको, जाके चेक कर लीजिएगा। नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आलम, इजहार आलम जो कि पंजाब का डीजीपी रहा है, उसने आलम सेना बनाई हुई थी जो रात को लोगों के घरों में सिखों का पहरावा पहन के जाके जुल्म करती थी और सुबह में फिर पुलिस की वर्दियां पाके चली जाती थी। ये ओपनली डीजीपी इजहार आलम ने खुद माना है कि हमने ऐसे ब्लैक कैट रख छोड़े थे
जो रातों को सिख बन के काम करते थे और सुबह में पुलिस की Yeah, वर्दी okay, Kabila, let me stop you there. I hear you. You're giving a lot of examples, which you're insinuating that this is an inside job. The agencies have done it. Somebody else has done it. If you have any proof, I think you need to approach the court. India has a judiciary. It has a मैं federal system. All those things. संदीप The India is run by संदीप जी Indian मैंने laws. कोर्ट का Yeah, ही हवाला दिया आपको, एक कोर्ट minute, का yeah. हवाला भी नहीं लेंगे आप मैं एक minute. कोर्ट का Yeah. केस नंबर दूं So आपको no, that's what. No, you don't have to quote each and every case. We are aware of these kind of claims. All these claims need to be examined by court, the judiciary, the state government, and central government. We have a system. You have to go through the system. You cannot go to UN. India does not run according to the laws of UN. ठीक है India runs according to the laws मैं of Indian Constitution. मैं So समझ yeah, if you have मैं any ओके grievances, you मैं have to go to the यूनाइटेड system, नेशंस my की friend. बात नहीं करूंगा संदीप जी नहीं करूंगा अब मैं Yeah, समझ I know any grievances, you have to go to the system. So everybody does it. You are no different. You are no special, or you're not any less or more. You have to follow the same system. ठीक है तो मैं आपके लिए छोटी सी एक जो मेरी अगर आप लोग मेरी प्रोफाइल पे विजिट करें तो मैंने एक बूढ़े बाप की जो कि आज भी हिंदू खत्री बना हुआ है उसकी पूरी की पूरी एक इंटरव्यू है ऐसे हजारों केस हैं जिनको दबका दिया गया डरा दिया गया कि तुम अब बाहर मत आना प्लीज उस बूढ़े बाप की एक बार प्लीज सुन लो वो सारी बात बयान कर रहा है आपको कि उसके लड़के को कौन उठा के लेके Yeah, गया कौन मरा Kabira, again, you're making all these claims. Just because there's a claim, that doesn't mean it's true, right? These needs to be जो बूढ़े investigation. बाप का बेटा मरा I है think तो वो रो I रहा है think Yeah, क्लेम है संदीप I'd say I'm not saying it's whether true or he's a false. Hindu I please think he's a Hindu you're provoking people now. I Okay, think you're Yeah. provoking the people. Yeah, Kabila. Kabila, we heard few cases. आप डर क्यों No. रहे हैं एक क्यों नहीं minute, यार. इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कबीला इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कबीला whenever you guys don't want to Just do one it second, guys. कबीला विद ऑल ड्यू Let me speak रिस्पेक्ट to him. जैसे Yeah. संदीप जी कह रहे हैं कि यू आर ट्राइंग टू प्रोवोक लेट्स नॉट प्रोवोक आपने बात कह दी आई थिंक यू पुट योर पॉइंट वी गेट इट लेट्स मूव ऑन कोई Yeah. छोटा सा पॉइंट एक ही छोटा सा पॉइंट संदीप जी अगर भाई एक Yeah, छोटा go ahead. 30 seconds. Yeah. ये जो इंडिया बॉम्बिंग हुई थी उसमें मेन कल्प्रिट था रिपू दमन सिंह मलिक इसे सरकार ने उस कांड से थोड़ी देर पहले $2 मिलियन किस खुशी में दिया था इंडियन सरकार ने और जो जगदीश शर्मा वैंकूवर एम्बेसी का एम्बेसडर था उसने आउट ऑफ द वे जाके वो अप्रूव कराया था वो आपको किस तरफ इशारा कर रहा है तो आप ये बात ना Yeah, सवाल गलत just प्लेटफॉर्म a पे पूछ second. रहे हैं प्लीज गो आस्क कांग्रेस Yeah, Kolji. go ask Congress party because Yeah. that तो was on इसका that मतलब was ruling. आपको भी पता है कि मेन कल्प्रिट कांग्रेस या कांग्रेस के लोग थे जिन्होंने सिखों को बदनाम किया है Yeah. आप आज भी सिखों के साथ खड़े होने के बजाय उन्हीं लोगों के साथ खड़े हो रहे हैं जो कांग्रेस के कर्ता धर्ता थे कौन खड़ा हो रहा है यार you just start lying you make your points सीसस की रिपोर्ट पढ़ लें Yeah, Kabila, like I said before, you make a lot of claims. I'm not saying that whether they're true or false. Just because there's a claim doesn't mean it's true. A lot of people make claims about 9/11 too. Does it mean all the claims are true? No. So yeah, the culprits of Kanishka bombing and all those things. There are many other things we can quote. And again, any claim has to go through the scrutiny. That scrutiny is Indian judiciary, Indian court system, Indian political system. Okay, so just I can make 1,000 claims. That doesn't mean they're all true. Sandeep, again, see there is a anti-Brahman tweet. This guy Dwaba has pinned. Please remove it. Your space is being used for racist propaganda. Yeah, I'm removing Doba as well. Just he's not adding any value to this thing. So, yeah, Bindiwala, go ahead. So my question to those two people who just joined the meeting, and I just want to ask: we saw the referendum votings, but Hindus, Muslims, they don't involve in any kind of those votings. So what are where their concerns are?
like during those like referendum meetings, like they asking for the Khalistan, right? So they also have right. Hindus of Punjab, Hindus who are living abroad belong to Punjab. They also have right to do the voting in those referendum. So this is my question to those two losers, but I don't want to talk with them now. संदीप जी मुझे बता दीजिए जब मुझे आंसर करना है इस बात का। कबीला जी एक जवाब मैं आपको देती हूँ। जो एग्जाम्पल आप लेके आ रहे हो ना, वही सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है पंजाब में। लोगों के घरों में वारदातें हुई हैं। मैं तुम्हें 5 अपने ही घर के लोगों का बता देती हूँ, जिनको खालिस्तानियों ने, टेररिस्टों ने, भिंडरावाले के आदमियों ने मरवाया। मेरी अपनी एक फ्रेंड है जिसके फादर को शादी के दिन उनकी बेटी की शादी के दिन मंडप में बैठने से पहले गोली आके मार दी। मेरे अपनी भाभी के चाचा जी को आके ये भिंडरावाले के टेररिस्टों ने आके मारा। एक और मेरी एक फ्रेंड है जिसके फादर को मारा। आप अपने गिने-चुने 2-4 वो पॉलिटिकल से इश्यू लेके यहाँ पे मत आइए। आप किसी को बरगला नहीं सकते। आप इस बात से ये नहीं कह सकते कि हिंदुओं की वहाँ पे हत्या नहीं। ये शुरुआत ही वहाँ से हुई थी। ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। इससे ज़्यादा हम लोग नहीं बोल सकते और आपको ये बता दें, फिर बता दें कि सारे सिखों के मत खालिस्तानियों से नहीं मिलते। हम बहुत सारे अपने सिखों भाइयों को जानते हैं, जो बड़ा शांति से रहना चाहते हैं, जो पीसफुली रहना चाहते हैं और वो उनकी आवाज़ भी उसी तरह दबी हुई है, जिस तरह से हिंदुओं की आवाज़ पंजाब में दबी हुई है। So, you know, don't give us any kind of bring stories कि पुलिस वाले ने मरवा दिया, फलाने ने मरवा दिया। हम बता दीजिएगा But जब that's it. मुझे बात करनी है। हाँ, बस आपकी बात सुन ली है, अब औरों को सुनना है। और चलिए और ऐसा संदीप नेक्स्ट। करना है, 2 बंदों ने बात की फिर मुझे एक को मौका देना पड़ता है। बहन ऐसा तो ना ऐसा बनता ही नहीं है। Yeah, Kabila, we'll come to you. Let's go to others as well. So, yeah, third eye, go ahead. Yeah, so I think I just want to speak to. So I think Kabila ji somewhere has this भाई construct. मैं गांव का बंदा हूँ, छोटा दिमाग है, 3-4 क्वेश्चन कैसे याद रखूंगा? एक-एक करके कर लो ना यार। नहीं आप रख लोगे यार, और अगर इतना दिमाग नहीं है तो फिर क्या कर रहे हो यहाँ पे? भाई So, गांव का खेती बाड़ी वाला बंदा हूँ, आपको तो पता ही है। आप पढ़े लिखे प्री ओल्डर लोग हो, खेती बाड़ी करता इधर आ गया हूँ, तो पता ही है आपको सारी बातों का। ठीक, अगेन कोई यू बात प्लेइंग विक्टिमहुड। मेरी सारी फैमिली खेती बाड़ी वालों की है। मैं भी पंजाब की हूँ, पंजाब में अरे डिस्ट्रिक्ट लुधियाना में। बस आप ये नहीं कह अरे सकते आप सारे रहने लोग दीजिए खेती भाई, नहीं नहीं तो उसको क्या एंगेज। एक पॉइंट क्यों नहीं कर लेते आप? उसमें क्या प्रॉब्लम है हमें? अरे sir, because there are too many people and you won't get Yeah, 50% of their Kabila, time. 1 second. Kabila, just let him speak the way he wants to speak. It's up to you how you want to answer, right? Just don't make it a big issue. Go ahead, third eye. Yeah, and I think Kabila ji somewhere has this mental idea. Yeah, third eye. Request just 1 second. Request you don't make it a question and answer session. I'm sure you can make your point without asking a question. So just make your point, then he can answer. If you're accusing him of something, accuse him. Then he can defend himself. Don't make it a question and answer that. We're Got not it. going to go anywhere. Yeah, definitely. So I'll just use a quote. It was said that Sikhs have been requesting for Khalistan for the longest of time. Actually, it's not true. And the current political results of the state of Punjab tell us that. Shiromani Akali Dal fought on all seats. They won at only one district, one constituency, which is Amritsar. So, bhai, if everyone really wanted a Khalistan, at least Shiromani Akali Dal would have been victorious on all seats in Punjab. Bhai, the Punjabi Sikhs and the Punjabi Hindus are themselves rejecting the entire Khalistan idea. And this is the way to look at it. Look at it from a civilizational perspective. Let's zoom back and see why can't Khalistan become a reality. From the religious perspective, if you say कि भाई हमारा religion अलग है, हमको खालिस्तान अलग चाहिए because that is our right to self-determination, that cannot happen because we derive from a similar source. पुनीत जी यहाँ पे आए थे, we had a lot of discussion about it. Historically अगर आप बात करोगे कि नहीं आज से a few hundred years ago Khalsa was ruling over there, भाई उससे थोड़ा पहले the Muslim invaders were ruling over there.
I want to go all the way back to 3000 BC and 4000 BC and say कि भाई on those rivers वो Hinduism was born, so rightfully it is my land. तो मैं वहां पे जाके क्या मैं वहां पे जाके अपना लैंड क्लेम कर लूं क्या? So historically it's not possible. Culturally the Sikhs have been very well integrated into the Indian community. Cultural divide इतना नहीं है कि आप अलग कंट्री मांग लो. घुमा फिरा के पॉलिटिक्स एक चीज बनती है. लाइक they have issues with the water management in Punjab. They have certain issues with the way Sikhism is referred in the constitution. All of that can be corrected within the political framework that we have. So again, the demand for a Khalistan is not justified. Bhai, line by line, every argument these Khalistanis make can be countered. जब कोई बेसिस ही नहीं है उस चीज का, पता नहीं वो खिचड़ी बनाते रहते हैं. They keep sort of going in circles. It is almost like a snake eating its own tail. कहाँ बात शुरू हो रही है कहाँ खत्म हो रही है कुछ समझ में नहीं आता. तो कबीला जी अगर हमको थोड़ा समझा देंगे कि खालिस्तान क्यों चाहिए, तो फिर हम क्या पता हमें भी समझ में आए. संदीप जी आप होस्ट हैं, मुझे बता दीजिएगा जब मुझे बोलना है. Yeah, okay, go ahead, answer. थैंक यू वेरी मच. पहली बात तो ये कि भाई साहब वो लोग रोज इधर स्पेस बनाते हैं, आप उनसे जाके पूछे, बहुत ही अदब से बिना गाली गलौज के वो लोग बात करते हैं. आप उनसे क्यों नहीं पूछते जो ये बात कर रहे हैं, रेफरेंडम करा रहे हैं, कोई दूसरा तीसरा. ओ भाई मेरी तो सीधी सी बात है कि जैसे आप कहते हो कि आधे सिख एग्री नहीं करते वो दूर, मेरा तो बड़ा सिंपल फंडा है कि 99% हिंदू, सो कॉल्ड हिंदू, वो थाईलैंडियों की बात से बिल्कुल एग्री नहीं करते. इनफैक्ट दे नो व्हाट दे आर डूइंग. और जैसे ये जिन्होंने भिंडी वाला लगाई हुई है, जैसे इन्होंने जाट समाज के बुजुर्गों की ऐसी तस्वीर बना के लगाई है, तो क्या हम भी फिर परशुराम की ऐसी तस्वीरें बना के लगाए? कभी आपने देखा कि हमने ऐसी बातें की हैं? नहीं. हम अच्छे इंसान हैं. We still want peace in that region. He's again targeting. No, I'm not targeting anybody. I'm not targeting. Okay, let him speak. आप Yeah, go ahead. आप किसी के परिवार की, किसी के बुजुर्गों के बारे में उल्टा बोलोगे तो भाई साहब आपके बुजुर्गों की भी तो हिस्ट्री अब उन्हें पता है, पढ़ लेते हैं उनके बच्चे. आप कह रहे हो कि भिंडरा वाले की फोटो क्यों लगाई हुई है? बिल्कुल जी, क्यों लगानी चाहिए ऐसे? अच्छा, तो आप इसी से ही अपना कंट्राडिक्ट कर रहे हो कि आप हिंदुओं के बारे में केयर करते हो. जिस इंसान ने जिस भिंडरा वाले को हिंदू जो है वो टेररिस्ट मानते हैं, मैं कोई चबा के बात नहीं कर रही हूँ, ओपनली बोल रही हूँ, हम उसको टेररिस्ट मानते हैं. हमारे परिवार के बंदे मारे हैं उसने. मैं तुझे 4 बंदे अभी बैठ के गिना चुकी हूँ. तुम सोचते कि उन लोगों की वैल्यू नहीं थी? 1 मिनट What do you think? कबीला What do तुम you क्या think if I सोचते हो कि use? मेरी भाभी के फादर चाचे की कोई सरकार कीमत आपकी नहीं थी? विक्टिम कार्ड भी तुम्हें आप क्या खेलेंगे तो कैसे डोंट चलेगा? स्टॉप इट. I'll throw you down, okay? Don't tell us that Bhindranwala was your family member. If that guy terrorist was your family member, get out from here. We don't need you from here. You are offending every Hindu sitting here. समाज की बात कर. What if I use the picture of Kasab? Okay, use it, do it. We don't care. Yeah, Kasab or okay. anybody. Yeah, Kabila, let's move on. संदीप जी छोटी सी make बात, your point. No more. Wait, listen to you enough. The moment you call 1 minute, the moment you call Bhindranwala your family member, we have nothing to do with you. Get out from here. I can throw you out right now. स्वामी सुब्रमण्यम ने भी ये बात कही. I don't give a damn. Swami Subramaniam is a politician. You don't understand that? आप समझती हैं कि वो जो ब्राह्मण है वो जो रोज उनके साथ Don't tell me that Brahmin or anything. I am a Brahmin too. I am a Brahmin too, but I respect everybody. Kshatriya, Brahman, Sikh. I have many Sikh friends. No, 1 minute, Kabila. Listen to me, okay? We are not going to listen to you from the moment you say that Bhindranwala was your. I want to throw you out, okay? Now shut up. सच बोलना मुश्किल हो जाता है समाज में अक्सर. Yeah, okay, Kabila, I think you made your point. Just, okay, let me answer you. Right, one, about referendum. I think this is the issue with people who want a separate land because they cannot live with Hindus.
Doesn't matter how large or small that is. That's not going to happen. What you're asking for is a genocidal state based on a theology. That will never happen. We also have a state which is based on theology, and it's called Pakistan. You, Biniji, can you mute yourself, please? Yeah, thank you. So we already have a theology which is based on the same ideology. I think you just have to cross the border, my friend. There is not going to be any referendum. It is the issue of protecting the minorities. Hindus are the minorities. There are also many Sikhs who are mixed with Hindus through family ties. In one family, there are Hindu and a Sikh. So now you're saying that somehow you are superior or you are different. That's why you need a separate land. We have seen this story play out before. We're not going to let that happen again. It is the question of protecting humanity. So you are okay to, we are okay with you practicing your religion whichever way you want. But we are not going to allow you to create partition India one more time based on some theology. So you just have to cross the border. I think third eye. You already spoke. Gurjar, go ahead, sir. जी बड़ा बड़ा थैंक यू आपका मुझे माइक देने के लिए। मैं एक्चुअली छोटी सी बात कहना चाहूंगा, या ज्यादा बड़ी बात नहीं मैं कहना चाहूंगा कि देखिए जो सिख जो नॉर्थ इंडिया है ना, सांची के स्तूप से ऊपर ऊपर, आपको पता ही है कि ये भारत होने से पहले और इंडिया होने से पहले ये ब्रिटिश इंडिया भी था, हिंदुस्तान भी था, और एक पंजाब एक अलग स्टेट था। तो मतलब जैसे मैं समझता हूँ इसको, सिक्खी को और सिख रिलीजन को और पंजाब वालों को, मैं ऐसा समझता हूँ कि ये जो सिक्खी है ये यहीं का रिलीजन है। और आज जैसे इनको खालिस्तानी बोला जा रहा है और जैसे डिग्रेड करते हैं इनको, तो मुझे नहीं लगता कि अगर आज मुगलों का दौर होता तो इनको शायद खालिस्तानी बोला जाता या इतना डिग्रेड या संताबंता.com जितने भी सारा कुछ बोला जाता है। पर मैं ना आपको ग्राउंड की रियलिटी जो है ना उससे थोड़ा रूबरू मैं कराना चाहता हूँ। जैसे गांव के जो रियलिटी, क्योंकि दो तरह के लोग हैं यहाँ पे इंडिया में, एक तो शहर में रहने वाले हैं और दूसरे जो हैं वो गांव में रहने वाले हैं। तो जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनको एक्चुअली ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में जो जासूस होते थे उनके बारे में भी पता है, उनको सिखों के बारे में भी पता है, उनको बेसिकली वो सिखों को अपना मानते हैं। मैं नहीं समझता कि शायद शहर वाली शायद जनता वो होगी, वो अलग होगी। पर जो ग्राउंड की जो रियलिटी है आज के टाइम में जो यूथ है अग्रेरियन कम्युनिटी का, उसको जाटों के बारे में भी पता है, उसको ब्राह्मणों के बारे में भी पता है, उसको अहीरों के बारे में पता है, उसको भिंडरावाला के बारे में पता है, उसको सारी चीजों के बारे में पता है। मतलब जो बेसिकली मान लो जैसे मैं एक गांव से हूँ, तो बेसिकली हम अपने आप को जो अग्रेरियन कम्युनिटी है जिसमें जाट हो गए, गुज्जर हो गए, राजपूत भी हो गए, उसमें अहीर भी हो गए, उसमें सैनी भी हो गए, बड़ी सारी जो किसान का मेरा कम्युनिटी है वो सिखों को अपना मानती है। हाँ शायद आप लोग नहीं मानते होंगे उनको अपना, क्योंकि आप शहर में रह रहे हो और आप जितने भी ज्यादातर बैठे हो वो ज्यादातर आप ब्राह्मण ही हो यहाँ पे बैठे हुए। तो हमें हमें पता है सारी रियलिटी का। थैंक यू सो मच मुझे माइक देने का। सो यू थिंक ब्राह्मण जो है वो सबको अपना नहीं मानते? आर यू एक सेइंग दैट? एक बात बताइए, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में जासूसी का काम कौन करता था इंडिया में? देखो ये Yeah, it's so funny. this is nonsense, Gujar. I'm going to throw you down. Even the I people. can give you proof from Cambridge University. Yeah, this is Those old this is a people are brainwashed. racist thing. Even a lot of authors of the Guru Granth Sahib are Brahmins. I think 22 odd authors of the Guru Granth Sahib were Brahmins. So just to pick on, see, this is the whole Khalistani project, right? This is the supremacist racist project. They target Brahmins, they target Biharis, they call them Bayas. Just go and look into each one of their Twitter handles. You will see all these slurs.
These people are nothing but hateful bigots who are playing out their fantasy of supremacy in Canada, US, and Australia. And these people forget that a lot of Sikhs do live outside Punjab. The most prosperous Sikhs live outside Punjab. Just go and Google how many gurudwaras there are in Bangalore, for example. It's in South. It's a now growing city of software. A lot of people are there doing high-paying jobs. Do they care for them? No. These people are only interested in playing out a supremacist fantasy. Um, just again, anybody, I'll give you a mic, but if you come here and target any caste, I just have to throw you down. It's just not a civil or intellectual conversation. I'm not going to let you play out your supremacist fantasy on my space. Let's go to Harjeet. जी थैंक यू। आप लोगों ने पहले बात की कि जैसे पंजाब के कुछ मतलब इशू हैं, कुछ पॉलिटिकली हैं, कुछ मतलब संवैधानिक भी हैं। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि अगर खालिस्तानी प्रोपेगेंडा है, जो व्हाटएवर कुछ भी है, अगर इसको डिफ्यूज़ करना है तो सबसे बेहतर यही है कि अब राष्ट्रवादी गवर्नमेंट है सेंटर में, इनको अकालियों के साथ मिलके जो भी इश्यू हैं वो सारे खत्म कर देने चाहिए। जो मतलब वाटर के हैं, जो जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है, जो नंगल डैम है, उसके ऊपर मतलब उनको डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है स्टेट के तौर पे। स्टेट को मतलब साइडलाइन कर दिया जाता है उनके हकों के ऊपर। तो फिर ये मांगे तो उठेंगी ना। अगर अब भी नहीं ये कर पा रहे तो फिर कौन करेगा? इतनी मेजोरिटी के साथ तो कोई भी नहीं आएगा। मुझे नहीं लगता कभी कोई इतनी स्ट्रांग गवर्नमेंट आएगी। तो ऑलरेडी इनका अलायंस भी रह चुका है अकाली दल के साथ बीजेपी का। अगर ये वादा करके नेक्स्ट इलेक्शन में मतलब आते हैं तो ये दोनों पार्टियां पंजाब में गवर्नमेंट बना सकती हैं। तो ये सदा के लिए ये मुद्दा भी खत्म हो जाएगा। तो मतलब करना नहीं ना चाहते, प्रॉब्लम तो ये है। तो मतलब जो मांगे हैं भी, पंजाब जो मांग भी रहा है वो कोई आउट ऑफ द वे जाके कोई एक्स्ट्रा नहीं मांग रहा। वो मतलब सिंपल है। कोई मतलब इतने जब हम आनंदपुर का मता भी पढ़ते हैं जिससे सारा काम शुरू हुआ, अगर आप लोग उसे पढ़ लें तो आप हंसेंगे कि सिख मांग क्या रहे थे, तो उसे क्या बना दिया गया। मतलब ये है ना, कम्युनिटी के अंदर तो फिर मतलब आएगा ही आएगा कि यार ये हमारे साथ ही क्यों ऐसा करते हैं, जो हमारा हक है हमें वो नहीं मिल रहा। तो बेटर यही है कि बीजेपी के पास अब मौका, और अकाली दल के साथ अलायंस करें, और पंजाब के साथ वादा करें, क्योंकि पंजाब कला सिखों का तो नहीं है, वहाँ पे हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं। तो जब भी वहाँ पे जो भी कुछ स्टेट को मिलेगा तो वो वहाँ पे रहने वाले सभी लोगों को ही मिलेगा। वहाँ पे कल्ले सिख तो फायदा नहीं ना उठाएंगे। जो वाटर मतलब उनको मिलेगा तो उसका फायदा तो सभी लोगों को है। तो ऐसे करना चाहिए। मुझे तो लगता है कि इस मुद्दे को डिफ्यूज करने का सबसे बढ़िया मौका है बीजेपी के पास। तो कर देना चाहिए और नेक्स्ट गवर्नमेंट बनानी चाहिए दोनों पार्टियों को मिलकर पंजाब में। थैंक यू। Yeah, thank you, Harjeet. Yeah, spoken yet. Brijesh, go ahead. Brijesh, Yeah, Bismillah thanks, kare Sandeep ji. janab. Yeah. Hello, Sandeep. Can you hear me? Yes, yeah. Yeah, I was clear that I think I'm going to touch something else which has not been discussed here so far. So I'm going to tell a bit kind of harsh truth, but the conversion is one of the biggest factor in the Punjab. I think I will tell you, my school friend, you can see, I mean, so in my school WhatsApp group, the that guy is a pastor right now, and I'm basically from Chhattisgarh. Got me? So he's a pastor. He gets lots of funding from Europe, from Switzerland, from Norway, and he's just doing the conversion in the Punjab, in the Uttarakhand, in the Telangana as well. So in the Punjab, I can certainly tell that he has converted more than 806 easily. You got me? So here at you talk about Hinduism, Brahmins, Khalistans, but that guy, he's clearly converting Sikhs. The Sikhs, they are having the turban. You got me? And then the entire family. I'm sure. I think those Sikhs. I think they're mostly from the lower caste.
I'm sorry to say that, but this is how it is happening there in the Punjab. Go and find the number of churches are being built in Punjab. You must have never thought in you got me 20 years ago, 30 years ago. Have you ever thought that a Sikh wearing turban will be a Christian? But low caste Sikhs have no power. Yeah, There's yeah, no yeah, yeah, power. I don't know. Yeah, exactly. But I'm trying to say that gradually, the conversion is on the peak, is on high. And you got me. I'm telling you right now because my school friend, I can share, you got me, hundreds of pictures directly from the WhatsApp. I can share his Facebook ID as well. You can see all his pictures as well. How many people he converted, Hindus and Sikhs both. But interestingly, right here, the Khalistani people, so to say, but they don't talk about the conversions. They don't talk about these pastors who convert the people. Not at all, actually. Not even once ever since. You got me. I see Amrit Pal. He's talking so many things, but not even once he has talked about the conversion. Not even once. And you got me. It is quite plain and visible. Just go and search Punjab church in Google. You'll see one of the tallest churches being built in India. Lots of funding is coming from US. And it's you got me. It's a totally first-hand scenario. You got me. I'm not getting this from the newspapers or that any other newspaper from the what call BBC, CNN, or the Indian news. It's a first-hand information I'm giving you right now. But interestingly, It's no very one. sad. Yeah, Very yeah, sad. no, Yeah. yeah, no one about this one. No one is talking about this one. You can see Khalsa ad, Pannu, all XYZ people, right? But you got me. They have got so much, sorry to say, hatred for the Hindus, for Modi, for India, whatever it is. But not even once they will raise their voice against these pastors. Not even once. ब्रिजेश जी, अभी अभी किसी ने ब्राह्मण की बात की थी। मैं यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ वेरी क्विकली आई विल ट्राई टू टेल यू कि जो सिखों में कितनी जाति हैं। जो सिख कास्ट है, उदासी, निर्मला, नानकपंथी, खालसा, सहज धारी, नामधारी, निरंकारी, सर्वेरिया, मिन्हास, रामगढ़िया, वो कास्ट नहीं सेक्ट it's होते not हैं। 1 minute the वो sect, okay, कास्ट नहीं सेक्ट okay, होते थे। right जैसे sects, जैसे एक शवायत मिनट हैं एक मिनट गलत मैं कर let me finish। आप उन लोगों को किस तरह से ट्रीट करते हो? कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है उनको किस तरह से ट्रीट करती है? आपके सिख जो हैं वो क्रिश्चियन इसलिए बन रहे हैं क्योंकि आप लोग जितने भी सिखों के जो जितने भी सेक्ट बने, लोग बर्दाश्त नहीं कर सके। एटलीस्ट उन्होंने कन्वर्जन से उन लोगों को रोका हुआ था। उनको उनके ऊपर कोई किसी ने पगड़ी कैसे बांध ली, अरे हमारे गुरु गोविंद सिंह जैसे पगड़ी बांध ली या किसी और को कि इसको मार, उसको मार। इस तरह से कर के आपने अपना कौन सा खालिस्तान ढूँढ रहे हो यहाँ पे पंजाब में? तुम्हारे 80% तो हिंदू सिख जो हैं क्रिश्चियन बनने जा रहे हैं। और जो Yes. यस दैट इज़ अ फैक्ट। आप वो कहते हैं ना पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल ओए। आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। पहले जाके अपने उन सिखों को जाके क्रिश्चियन जो बन रहे हैं उनके पास जाओ, उनको अपने वापस लेके आओ। अपने गुरुद्वारों में अपने बराबर का स्थान दो। शिरोमणि गुरु प्रबंधक कमेटी में उनको बराबर का स्थान दो। उनको तो आप बराबर नहीं बिठाते हो अपने और यहाँ पे आके ब्राह्मण करते हो। आप लोगों को शर्म नहीं आती? बस मैं इतना कहना चाहती थी। ओके, हू इज़ नेक्स्ट? Yeah, thank you, Miniji. Just to Can I add to speak? what you said, दीप if you फिर want से to, मुझे याद if you, नहीं रहेंगे। yeah, Can I एक minute, speak, yeah, Sandeep? Kabila, 1 second, I'll come to you. If you really want to see the casteism among Sikhs on in work, just have to go to Sikh matrimonials. I don't have to say anything else. Just go to Sikh matrimonials and look at the kind of advertisements they give. It's all दीप pure जी caste. मैं तो खुद मान रहा था That ये is बात। minute, yaar, एक ही Kabila, बात कह रहे just yeah, I don't know why are you so impatient. Hold on for a second. Come here. You got the most of the तीन opportunities चार to पॉइंट speak. इकट्ठे कर लेते हो फिर बात नहीं बनती। एक minute, yaar. Can I speak, Sandeep?
Yeah, after that, I'll come to you. I mean, you ask me, can I speak? Then that will Okay, get everybody, further let Okay, delayed. thank you Sandeep so ji much. complete, and then we'll have Thank you so everyone much. one at a time. Yeah, everyone Hello. can speak after I speak. Okay, just don't keep on asking, can I speak? Can I speak? Thank you. So, Kabir, I will come to you. Everybody needs to speak. Just doesn't mean that for each question you get to reply every time. I'll give you most of the time, but again, others नहीं need to संदीप जी speak मैं as well. नाम Yeah. कह रहा था, आप ऐसा करें पोस्ट को करके पॉइंट लिख लिया करें, मेरे को याद नहीं रहते थे। Okay. Okay. I'll try next time. Just go ahead. Take 2 minutes. Make your point. Then I'll go to chat. ओके, थैंक यू सो मच। मैं एक सिख हूँ और मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ मिनी मैम से, और हमारी बहन ही है। अगर मैं एक सिख हूँ और मुझे एक पता है एक हिंदू है, वो देश का बहुत नुकसान कर रहा है, वो बहुत बुरा बंदा है, अगर मैं उसका मर्डर कर दूं, आपको क्या लगता है कि वो ठीक है या गलत है? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी, जी। No, हाँ, मैं hold on for आपको a देती हूँ। second. आप क्यों मर्डर कर देंगे उसका? अगर वो देश के लिए अच्छा नहीं तो हमारे पास पुलिस नहीं बैठी हुई? हमारे पास पुलिस है, उसके पास जाइए, उसको इन्फॉर्म करिए, क्यों बुरा है? आपकी नज़र में बुरा है, आपकी नज़र में तो अगर आप खालिस्तानी है तो आपकी नज़र में तो ब्राह्मण भी बुरा है। चाहे वो अपने घर जी, में बैठ के जी, रोटी बनाता थैंक करता यू। है, अपना अपना काम करता है, तो आपके लिए तो ब्राह्मण भी बुरा है। सो बुरा कौन है? क्या क्या आपका क्राइटेरिया है किसी को बुरा घोषित करने का? तो ये पता होना चाहिए ना पहले। देश के लिए बुरा है, हाँ, जो जी, देश के लिए जी। बुरा है उसको इन्फॉर्म कीजिए पुलिस को। वो चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, Yeah, चाहे मुस्लिम Mini हो। ji, just जी, मैंने hold on. वही मैं आसिफ क्वेश्चन पूछना था। Chacha ji, एक hold on for गॉड से Chacha हुआ ji. था, उसने ना Chacha ji, hold on for a second. Don't play this game. If you have a point, make your point directly. You don't have to play this question and answer game. A lot of other people want to speak. Make your point. I think you're smart enough to articulate your point. Just go ahead. You don't have to give the example of Mahatma Gandhi or somebody else. What is your point? Let's hear it. You got 2 minutes. वही मैं पॉइंट रखना चाहता था कि मिन्नी मैम को भिंडरांवाले से बहुत तकलीफ थी, जो गॉड से था, जो हमारे देश का पहला टेररिस्ट था, उसका ये स्टैटू बनाना चाहती हैं। ये इतना दोगलापन क्यों है? वो तो चाहती हैं भी, हाँ, पहले बोल रही थी हाँ, मारना नहीं चाहिए। गॉडसे ने महात्मा गांधी को मारा था। आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं भी